Dr. Sagar Chaudhary is a renowned practice management coach and motivational speaker, empowering dental students and practitioners across India and neighboring countries like Nepal, Bangladesh, and Pakistan. As we get participants from those Facebook groups and social media also. Through engaging lectures, workshops, and online content garnering over 6,000 subscribers, Dr. Sagar has inspired countless dental professionals to build and grow their practice from scratch. Most of the time, freshers are the participants because they want to learn how to start their practice, how to start their clinic, and the topic uh, matches their thoughts. He is a keynote speaker for prestigious organizations, including Guru Mantra Dental Academy, GSK Sensodyne, sorry, and Dr. Dentiste Academy, Delhi, and regularly conducts workshop under the banner Learn What Matters. These sessions focus on the principles of successful dental practice management, covering topics such as general dentistry, endodontics, and implantology. He has a center at his clinic where general dentistry courses are conducted, including the endodontics, implantology, and various specialties of dentistry. By combining clinical knowledge with business acumen, he is shaping the next generation of dentists to succeed in both patient care and practice operations. So this doesn't mean any senior is not his participant or a learner. I am also a learner and always learn from him and all the mentors. So let's learn from him today how we can build our practice. Welcome, Dr. Sagar Chaudhary. Over to you. Thank you, sir. Thank you so much for your kind words. It's always a pleasure to work with you, to work with ADC, because you guys collect the people who are really in the need for growth and who are really keen to learn. So, not wasting time as we have only 1 hour, I'll start the session. Am I audible, sir? Am visible? Any glitch? Or Perfectly. Everything okay. is So, as the topic is that gaining and retaining patients in a dental clinic, although it's a very big topic, but I would try to cover everything possible right in between that. And these two things, I believe, are not different. Gaining and retaining, these are two things जो एक ही बैनर के अंदर आती हैं. हमें लगता है कि पहले गेन करेंगे, फिर रिटेन करेंगे, फिर और गेन करेंगे. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जिसको आप गेन कर रहे हैं, अगर आप उसको ही रिटेन करते रहें कंटिन्यूअस, और वो ही आपके लिए पेशेंट्स लाता रहे, दैट लूप शुड बी देयर. Yes, new patients should come in the OPD. Without referrals also they should come. But referral patients from those patients जो आपके पास स्टार्टिंग से आ रहे हैं, और शुरुआत के 3 से 5 साल में, स्पेशली जो नए प्रैक्टिशनर सुन रहे हैं, उनको मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर सुधीर भी उससे रिलेट करेंगे कि शुरुआत में आप जिस तरीके के पेशेंट्स को अलाउ करते हैं अपने क्लिनिक में ट्रीट होने के लिए, एज डॉक्टर सुधीर के क्लिनिक पे काफी ऐसे लोग आते हैं जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं या हाई रेप्यूटेड स्पेसिस में हैं. तो जब आप ऐसे लोगों को अलाउ करते हैं और उनका स्किल सेट इतना अच्छा रखते हैं कि आप बेस्ट उनको दे पाएं, तो फिर उसी तरीके का क्राउड आपके क्लिनिक पे आने लगता है. इसका मतलब ये नहीं है कि जो पेशेंट, जो डॉक्टर्स रूरल एरिया में या सेमी रूरल एरियाज में क्लिनिक चला रहे हैं, तो वहां पे चीजों की ग्रोथ नहीं होती. उनकी ग्रोथ का पैटर्न अलग है. तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. ओके. सो मुझे लगता है कि एक, अब लगता है, पहले ऐसा लगता था कि शायद सब कुछ मैं कर सकता हूँ. एक क्लिनिक था मेरा, एक चेयर थी मेरी, राइट. मुझे लगता था कि ये भी कर लूंगा, मैं असिस्टेंट की भी जरूरत नहीं है. कास्ट भी खुद पोर कर लूंगा, और फोन भी खुद उठा लूंगा. पर slowly and gradually, because of the seniors, from the guidance of different mentors and including डॉक्टर सुधीर, काफी लोगों से ये धीरे धीरे करके पता लगा कि प्रैक्टिस को अगर आपको बड़ा करना है, विजन बनानी है, या तो आप एक चैम्बर को, एक चेयर को पूरी जिंदगी चलाते रहिए, बट वो ग्रोथ कम रहती है. अगर आपको प्रैक्टिस को बड़ा करना है, और बड़ा नहीं कर सकते तो कम से कम मल्टीपल प्रैक्टिस करनी है, तो बहुत जरूरी है कि आपके पास एक टीम, राइट. और टीम का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचें कि जिस दिन मेरा क्लिनिक 10 साल पुराना हो जाएगा, तब मैं एक एसोसिएट डेंटिस्ट रखूंगा, तब मैं एक असिस्टेंट ऐड करूंगा, तब मैं मल्टीपल लैब्स यूज करूंगा, तब मैं कंसल्टेंट्स यूज करूंगा. टीम आपको जल्दी बनानी होती है. ये गलती मैंने करी, आप ना करें कि आप टीम बनाने में देरी करें, राइट. तो टीम जब बनती है ना, तो आप
एक वक्त के बाद उस लेवल पे आ जाते हैं, आफ्टर 10 years ऑफ प्रैक्टिस आई वुड से, कि आप फेस ऑफ द क्लिनिक जरूर होते हैं, पर आपकी एक सीनियोरिटी हो जाती है कि आप ये वाला काम करते हैं, राइट, और टीम आपके लिए अलग अलग काम करती है। इस पे फर्दर डिस्कशन करेंगे। पर डेंटल प्रैक्टिस में बेटर स्किल, बेटर इंस्ट्रूमेंट्स, बेटर टीम, ये तीन चीजें साइड बाय साइड काम करती हैं। बेटर स्किल के लिए ऑब्वियसली यू कैन लर्न मोर, यू कैन टेक कोर्सेज, यू कैन study more. Better instrumentation, obviously you have to save money to invest in your clinic. और better team के लिए you have to make sure कि आपकी आंखें खुली रहें, आप देखते रहें कि आपके कंसल्टेंट्स आपको बेस्ट दे रहे हैं ना, आपके एसोसिएट डेंटिस्ट आपको बेस्ट दे रहे हैं ना, आप उनको बेस्ट ट्रेन कर पा रहे हैं ना, राइट। वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और तब आपकी ग्रोथ होनी शुरू होती है। सो कमिंग बैक टू द मेन कोर टॉपिक, दैट इज गेनिंग योर पेशेंट्स, राइट। अब यहाँ पे दो तरीके के प्रैक्टिशनर्स यहाँ पे मौजूद होंगे। वन, जिन्होंने क्लिनिक प्रैक्टिस शुरू जस्ट की होगी, 1 year 2 year 3 year मैक्सिमम, एक जिनको 3 साल से ज्यादा हो गया होगा, और एक जिनको शुरू करनी होगी, ये भी कैटेगरी होगी। तीनों के लिए ही सिमिलर एडवाइस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पे। क्या सिमिलर एडवाइस है? जिन्होंने शुरू नहीं किया है उनके पास अभी प्री मार्केटिंग का मौका है, राइट, और जिन्होंने शुरू कर दिया है उनके पास पोस्ट मार्केटिंग का मौका है। मार्केटिंग पे आएंगे, पहले इस पिक्चर को देखिए, है ना। यू डो नॉट हैव टू वेट फॉर द थिंग्स, है ना, यू हैव टू क्रिएट देम योरसेल्फ। आप अगर ये सोचते हैं, फोर्टिस अगर ये सोचता है कि मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा एक कमरे का, राइट, उसके बाद जब पेशेंट आने शुरू हो जाएंगे, मेरे पास पैसा होगा तो दूसरा कमरा बनेगा, फिर तीसरा कमरा बनेगा, तो उस तरीके से ग्रोथ धीरे होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप एक बार में बहुत पैसा लगाइए, मैं ये कह रहा हूं कि जितना मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं साइड बाय साइड अपने क्लिनिक पे, उसको उतना मॉडर्न, उतना बेटर बनाने की कोशिश कीजिए, उतनी बड़ी टीम रखने की कोशिश कीजिए, उतने अच्छे कंसल्टेंट रखने की कोशिश कीजिए। वेट मत कीजिए कि जब मेरे पास पैसा होगा। इट अपोजिट इज द ट्रुथ, दैट इज, जब आपके पास असिस्टेंट एक और होगा, जब आपके पास रिसेप्शनिस्ट भी होगी, जब आपके पास बेटर टीम होगी, तब आपके पास पैसा ज्यादा आएगा, क्योंकि पेशेंट जब घुसेगा क्लिनिक में, वो उस चीज की वैल्यू करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आज अगर आप बर्गर का नाम लेंगे दिमाग में तो सबसे पहले मैकडी आता है, अगर कोल्ड ड्रिंक का नाम लेंगे तो शायद कोक पेप्सी आता है, राइट। कोई ऐसी चीज नहीं आती जो इससे लो लेवल पे हो। वाई? क्योंकि उन्होंने अपने ब्रांड को क्रिएट किया। सिमिलरली, अगर पेशेंट के दिमाग में कभी, क्योंकि मल्टीपल डेंटिस्ट अवेलेबल हैं इंक्लूडिंग देयर रिलेटिव्स, कभी भी दांत के बारे में सोचे भी ना वो, तो आपका नाम आए, उसके लिए जरूरी है कि जब आपके वो क्लिनिक में घुसा हो, तो उसको वो वैल्यू फील हुई हो कि मुझसे अगर 500 रुपये कंसल्टेशन, 600 रुपये कंसल्टेशन, 1000 रुपये कंसल्टेशन ली जा रही है, तो उसकी वैल्यू क्यों है। फिर कितना अच्छा एसी है, कितनी अच्छी फ्रेगनेंस है, कितने क्लीन क्लिनिक है, कितना बेस्ट टीम है, कितना ड्रेस्ड अप प्रॉपर असिस्टेंट है, राइट, ऑल ऑफ दैट, कितनी अच्छी लाइटिंग है, कितना मेरा ख्याल रखा जा रहा है, कितना बिहेवियर टीम का है। डॉक्टर तक तो मैं पहुंचा ही नहीं, अभी टीम ने ही मुझे बैठने के लिए बोला, टीम ने ही मुझे पेन किलर के लिए पूछा, टीम ने ही मुझे पूछा कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको पेन किलर आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ऑल ऑफ दैट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इसलिए पहले ही विजन बना के चलिए कि मुझे इस चीज को बड़ा करना है। आज मेरे पास एक क्लिनिक है, जिसको मैंने दूसरे क्लिनिक में कन्वर्ट किया था, फिर मैंने एक चैम्बर ऐड किया इस क्लिनिक में, जिसमें दो चेयर और आ गई। तो ये विजन पहले से था, अब भी और भी विजन है आगे कि और क्या क्या करना है। तो अगर आप विजन नहीं रखेंगे ना, तो चीजें बहुत कंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि पॉजिटिव लोग तो हैं, नेगेटिव लोग भी हैं इंडस्ट्री में, जो आपको ये कह देंगे कि शायद इससे आगे आपकी ग्रोथ नहीं होगी, जो आप मान लेते हैं बहुत जल्दी। तो इसलिए वन थिंग इज कि बड़ा सोचिएगा, और उसको दिमाग में रखिएगा कि इस तरीके से करना है, हमेशा रखिएगा। असिस्टेंट के बिना, कम से कम एक असिस्टेंट के बिना क्लिनिक ओपन मत कीजिएगा, मत शुरू कीजिएगा। आपका असिस्टेंट का होना क्लिनिक पे, और एक एसोसिएट डेंटिस्ट का होना। आई वुड से कि अगर आप किसी को पे नहीं कर सकते, आपको लगता है कि शायद मैं अभी उतना पे नहीं कर सकता, या कर सकती हूँ, मुझे एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा डेंटिस्ट का अगर मैं बहुत ज्यादा पे नहीं कर पाऊंगी, तो वैकेंसी निकालिए। आपने कुछ सीखा है जिंदगी में, तभी प्रैक्टिस शुरू करिए। एक न्यू कमर को मौका दीजिए अपने साथ खड़े रहने का। जब आप साथ में होता है क्लिनिक में कोई, तो पेशेंट आपकी रिस्पेक्ट, आपकी रेपुटेशन ज्यादा समझता है। जब आप किसी को सिखाते हैं तो आप और सीखते हैं, और जब साथ में कोई पर्सन उसी लेवल का होता है जिस लेवल पे आप हैं, बीट बीडीएस एमडीएस, तो कभी भी कोई परेशानी होती है तो आपके साथ खड़ा रहता है। कन्वर्सेशन से लेके कम्युनिकेशन तक आप कुछ ना कुछ किसी से सीखते हैं। कहते हैं ना कि कभी आप तमीज से किसी से बात करें तो कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है, राइट। सो बी हम्बल, बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर एसोसिएट डेंटिस्ट। किसी ना किसी को रखिए, चाहे पे करके, चाहे टीचिंग के लिए, और दैट विल रियली हेल्प यू, दैट हेल्प मी।
राइट। इसकी मैं बात कर रहा था कि सीधे हम अगर आज इंडिया में बर्गर के बारे में सोचते हैं तो कोई इंडियन ब्रांड नहीं सोचते। कोई कोई भी इंडियन ब्रांड्स भी बहुत हैं बट नहीं सोचते। ठीक है, बर्गर हर इंडियन ब्रांड पे मिल रहा है, हल्दीराम पे भी मिल रहा है। राइट, बट व्हाई डू वी थिंक अबाउट मैकडोनल्ड्स? क्यों? और इससे क्यों गेन होते हैं पेशेंट्स? सबसे पहले तो सिंपल बात जान लीजिए कि अगर आपको पेशेंट गेन करने हैं, आपने क्लिनिक नया नया खोला है या 1-2 साल हुए हैं और आपको लग रहा है पेशेंट गेन नहीं हो पा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीच। आजकल के जमाने में रीच बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी तक पहुंचना। राइट, सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही नहीं, पर्सनली भी किसी तक पहुंचना बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर आपने क्लिनिक अपना ओपन कर लिया है या नहीं किया है, तो जब आप किसी को ओपनिंग पे बुलाते हैं अपने क्लिनिक में, चाहे वो आसपास के डॉक्टर्स हों जो रेफर कर सकते हैं आपके पास पेशेंट्स, चाहे वो मेडिकल स्टोर के ओनर्स हों, चाहे वो आपके कोई ऐसे लोग हों जो रोज पब्लिक मीटिंग्स में जाते हैं, फॉर एग्जांपल, जिनके साथ पब्लिक रोज मिलती है, जैसे बैंक सेक्टर है या जैसे आपके जिम्स हैं। ठीक है, तो आपके क्लिनिक अगर ओपन हो गया है या नहीं हुआ है, आप उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं अपने क्लिनिक पे फॉर द ओपनिंग ऑफ योर प्रैक्टिस इफ इट इज नॉट स्टिल नॉट ओपन। अगर ओपन हो चुका है तो व्हेन यू गो टू दीज प्लेसेस, फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक जाता हूँ, ऑल तो मुझे पता है कि मेरे जो बैंक है उसमें टीम चेंज होती रहती है, मैनेजर चेंज होते रहते हैं, कैशियर चेंज होते रहते हैं, तो आई मेक श्योर कि whenever I take their services, if I'm going to bank and I'm asking them for a loan or any service I'm asking them for, I make sure to introduce myself rightly. The problem is that we feel that डेंटिस्ट तो बहुत है इसलिए बताने की क्या जरूरत है, बट यू डू नॉट नो दैट डेंटिस्ट कितने भी बहुत हो, स्टिल पब्लिक के लिए, इंडिया की पॉपुलेशन के लिए अभी भी कम है, और पढ़ी लिखी पॉपुलेशन के लिए तो बहुत ही कम है। इसलिए रेपुटेशन अभी भी आपकी ज्यादा ही है, बीएड बीडीएस एमडीएस, डजेंट मैटर, यू आर ए प्रैक्टिशनर। ये बहुत बड़ी चीज है कि आपको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप किसी की हेल्थ के साथ सही कर सकते हैं, उसको उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, उसको पेनलेस कर सकते हैं। सो पीपल रियली रिस्पेक्ट दैट। ठीक है, तो बैंक मैनेजर्स हमेशा बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे मिलेंगे, आपको ऑफर करेंगे कि ये चीजें ठीक कर लीजिए, वी कैन गिव यू लोन, पुट योर आईटीआर इन दैट मैनर, वी कैन हेल्प यू इन दैट, एनीथिंग। ठीक है, तो जब आप उनसे सर्विस लेते हैं तो मेक श्योर टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ राइटली। जब आप जाएं तो ये नहीं कि चुपचाप बैठ जाएं और सर ये काम था बताइए, सर आई एम डॉक्टर सागर, आई एम डॉक्टर सुधीर, right, my practice is nearby your place and this is the work I am here for, right, that helped a lot। क्योंकि उसके बाद वो मैनेजर्स आए हैं हमारे पास, और सिर्फ सिंपल नहीं, पूरा इम्प्लांट्स कराने आए हैं, पूरा फुल माउथ रैप कराने आए हैं, और उसके बाद उनकी पूरी टीम आई है, रेफर हुए हैं हमारे पास, उनके ही मेंबर्स जो जो वहाँ पे आते रहते हैं, और हमारा काम आसान हुआ है क्योंकि हम तो उनका काम करते ही हैं। जब हम उनके पास जाते हैं, दे ऑफर अस यू नो द सर्विस जो किसी नॉर्मल पर्सन को बैठे बिठाए नहीं मिलती है। दे आस्क अस टू सिट डाउन इन द ऑन द मैनेजर टेबल एंड दे सेड कि सर आप बैठो, मैं करवाता हूँ सारा काम। सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कॉन्फिडेंटली, चाहे वो कोई भी जगह हो। ठीक है, बताइए जरूर कि आप मैं देखता हूँ लोग को लगता है कि ये तो शो ऑफ हो जाएगा कि अगर मैं कहीं पे ये फॉर्म में लिख दूं कि मेरा नाम डॉक्टर सागर है। शो ऑफ नहीं है, उसको नाम के आगे लिखवाया गया है किसी रीजन की वजह से। तो एक तो ये कीजिए। दूसरी चीज ये कि जब आप रीच करते हैं किसी को, ठीक है, आपने उनसे बात करना शुरू कर दिया, अब excuse me, हाँ, बात करना शुरू कर दिया, ये सब आपने अपने बारे में बता दिया, आपने उनको अपने क्लिनिक पे बुला लिया, ये सब डिस्कशंस हो गए। इसके बाद आपको क्या रिटेन करने के लिए करना है वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा। बट अब आ जाते हैं इस चीज पे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग के बारे में बात आ जाती है कि ये तो हो गया आपका रीच। ठीक है, कि आपने वहां तक रीच कर लिया, और क्या रीच के तरीके हैं? जो पुराने तरीके थे वो रीच के ये थे कि आपने बोर्ड्स लगवा दिए, पुराने तरीके ये थे रीच के कि आपने पैम्पलेट्स लगवा दिए। अभी भी कई लोगों को पुराने तरीके यूज करते हैं, बट अब पैम्पलेट्स को उठा के कोई नहीं पढ़ता। राइट, अब कोई भी बोर्ड्स को उठा के नहीं देखता, बहुत रेयरली होता है, शायद कुछ एरियाज में होता हो। आप जो हमेशा याद रखें, जो मैं बोल रहा हूँ वो हमेशा आपके लिए सही नहीं हो सकता आपके एरिया में वो काम करता हो। अगर वो काम करता है, दूसरे डॉक्टर्स करते हैं, तो यू कैन डू दैट, बट आइडियली डीसीआई एमसीआई अलाउ नहीं करता है कि आप बहुत ज्यादा प्रमोशन इस तरीके से करें। बट ऑनलाइन आप चीजों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप उनको जबरदस्ती पेशेंट्स को डिस्टर्ब करें, उनको मैसेजेस भेजें। ऑनलाइन का मतलब ये है कि देर आर डिफरेंट टूल्स जिसके थ्रू आपकी प्रेजेंस उनको फील हो सकती है। उनको फील हो सकता है दैट
there is someone in this market who is a dentist who is doing wonderful job and I can see that person regularly. जैसे अभी यूट्यूब पे तहल का मचा रखा था ना, रणवीर अलाहाबादिया ने, जब से प्रॉब्लम हुई है तब से बात अलग हो गई, बट जब से हो रखा था ना हर चीज में लूप में, यू कैन सी इवन इफ यू हैव सब्सक्राइब्ड, इवन इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, द पर्सन्स वीडियो विल कम 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 कम। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसे बूस्ट कर दें किसी का व्हाट्सएप, बट देयर आर वेज। और उस वे में सबसे इंपॉर्टेंट वे आता है कि आपके पास अपने हर पेशेंट का जो आपके पास आ रहा है, जिससे आप मिल लिए हैं, राइट, चाहे वो आप क्लिनिक ओपन करने से पहले मिले हो, चाहे आपके पास क्लिनिक पे पेशेंट आ गया हो तब मिले हो, उसका नंबर आपके फोन में सेव हो। फॉर फीमेल्स आई वुड सजेस्ट कि आप एक अलग नंबर रखें व्हाट्सएप का क्लिनिक के लिए, राइट, और पर उसको नंबर को सेव रखें और उस सेव नंबर में कुछ ना कुछ इंडिकेशन ऐसे डालें जिससे ये पता रहे कि वो पेशेंट का नंबर है। क्योंकि सागर नाम का पेशेंट भी हो सकता है, सागर नाम का डॉक्टर भी हो सकता है, सागर नाम का कोई भी हो सकता है। सो मैंने एक इंडिकेशन डाला हुआ कि मैं नाम के आगे पी लगा देता हूँ ताकि पता रहे कि ये पेशेंट है। अब ऐसा मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि जब मैं ब्रॉडकास्ट बनाता हूँ, एक ब्रॉडकास्ट के अंदर, एंड ब्रॉडकास्ट का मतलब ग्रुप नहीं है, ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि आपने एक बड़ा ब्रॉडकास्ट बनाया जिसमें आपने अपने पेशेंट्स को ऐड कर लिया, राइट। आई बिलीव 250 to 260 पीपल एक ब्रॉडकास्ट में ऐड होते हैं। अगर समझ लीजिए आपका बहुत नया नया क्लिनिक है और आपके पास दो ब्रॉडकास्ट बन गए हैं जो फुल हो गए हैं, दैट मीन्स आपके पास एटलीस्ट 500 पेशेंट्स आ चुके हैं, राइट। 500 पेशेंट्स का ब्रॉडकास्ट बने हुए हैं। अब जब आप उस ब्रॉडकास्ट में कोई चीज पोस्ट करते हैं, राइट, वो सबको दिखती है, जो भी ब्रॉडकास्ट में डॉक्टर पेशेंट्स हैं, बट वो किसी ग्रुप का मेंबर नहीं होते। तो उनके पास वो चीज तभी जाएगी जब आपका नंबर भी उनके पास सेव, राइट। अब ऐसा आप कैसे करेंगे? आप ऐसे करेंगे कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसका नाम और नंबर लिखते हैं, और जब वो जा रहा होता है तो हम उसको ये बात जरूर बोलते हैं कि सर, मैम, हमारा नंबर आप सेव कर लीजिएगा, राइट। वाई? क्योंकि हम टाइम टू टाइम कुछ कैंप्स या कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो पेशेंट के लिए बेनिफिशियरी हो, और अगर आपके पास नंबर सेव नहीं होता है तो आपके पास वो मैसेज नहीं आएगा, राइट। तो हम अवेयरनेस मैसेज भी भेजते रहते हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप हमारा नंबर सेव कर लें। यही बात तब भी बोली जाती है जब हमारा असिस्टेंट फीडबैक करता है, या फिर जब हमारा असिस्टेंट आपका फीडबैक के साथ साथ ऑनलाइन फीडबैक लेता है, राइट। तो वो सारी बातें बताई जाती हैं पेशेंट को और वो सेव करते हैं, राइट। इस तो आप आज ही इन्वेस्ट करें इस चीज पे कि जितने भी पेशेंट आपके हैं, राइट, उनका नंबर सेव करें विद डिफरेंट न्यूमेरिकल, एंड मेक श्योर, न्यूमेरिकल और अल्फाबेट, एंड मेक श्योर कि आप ब्रॉडकास्ट शुरू कर दें, राइट। और ब्रॉडकास्ट में क्या डालेंगे? ब्रॉडकास्ट में कभी अपनी तारीफ नहीं होती, देयर इज एडवर्टाइजमेंट एंड देयर इज मार्केटिंग। एडवर्टाइजमेंट इज समथिंग जो आप अपने बारे में गा सकते हैं, वो सब गा सकते हैं, पर सोचिए अगर मॉर्निंग में आप सो के उठे, और ये आपको रोज नहीं करना है, सैटरडे संडे और किसी त्योहार पे करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कल ईद है तो आपने अपने पेशेंट्स को ईद का मैसेज भेजा, या दिवाली है, दिवाली का मैसेज भेजा, दैट इज ओके, उतना आप कर सकते हैं, राइट, हैप्पी दिवाली, हैप्पी। बट ये गुड मॉर्निंग मैसेजेस नहीं जाएंगे। आपको ये जा सकता है कि आपको लगा वीकेंड है, सैटरडे संडे है, राइट, पेशेंट्स फ्री होंगे, घर पे होंगे, तो आपने कोई ऐसा मैसेज भेजा जो उनके लिए फायदेमंद हो, आपके लिए नहीं। आपको ये नहीं भेजना कि हम सिंगल सिटिंग रूट कनाल करते हैं, हमारे देखो क्लिनिक पे केस हुआ, नहीं। सेंड समथिंग जो उनके लिए बेनिफिशियरी हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अवेयरनेस मैसेज, जैसे कि डायबिटीज और दांत का क्या रिश्ता है, और किस तरीके से आप अगर अपने ओरल प्रोफाइलिसिस अच्छे से कराते रहते हैं, राइट, तो किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है आपके शुगर लेवल्स पे, या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, या आपके कार्डिक सिस्टम पे किस किस चीज की इफेक्ट होता है। ऐसे बहुत अवेयरनेस मैसेजेस ऑनलाइन में अवेलेबल हैं। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप अपने बना सकते हैं। देयर इज एक ऐप कॉल्ड कैनवा, ठीक है, जिसपे आप आराम से बना सकते हैं। अब तो कैनवा ने अलग से कैनवा डेंटिस्ट भी खोल दिया है, राइट, पेड फ्री दोनों है उसमें। अमेजिंग ऐप, सब कुछ बनाइए आराम से, किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यूज दोज काइंड ऑफ एप्स एंड सेंड देम अवेयरनेस मैसेजेस। तो फिर आप वो कब डालेंगे जो आपकी मार्केटिंग के बजाय एडवर्टाइजमेंट है? वो डालेंगे आप अपने सोशल मीडिया की स्टोरीज में। आप देखेंगे कि मेरी अगर स्टोरीज, अगर आप में से कोई मुझे फॉलो करता है तो आप देखेंगे कि मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज हैं अगर, या मेरी फेसबुक स्टोरीज हैं, या मेरी व्हाट्सएप स्टोरीज हैं। ये भी स्टोरी जो आज हमने लेक्चर ले रहे हैं इस बारे में, जो स्टोरी थी वो मैं डालता हूँ अपने सोशल मीडिया की स्टोरीज पे, ब्रॉडकास्ट में नहीं डालता हूँ, राइट। अगर मुझे डालना है कि मेरे क्लिनिक में कुछ चीज नई हुई है, या कोई डिफरेंट केस हुआ है, राइट, या किसी का फीडबैक आया है, तो मैं अपने पेशेंट्स को नहीं बताऊंगा, मैं स्टोरी में डालूंगा। स्टोरी से पेशेंट अपने आप देखेगा,
कि अच्छा फीडबैक आया है, डॉक्टर साहब के साथ कोई नया टीम मेंबर ऐड हुआ है, उनके यहाँ के एक नया इम्प्लांट केस हुआ है, या उनके यहाँ एक नई मशीन आई है, उनके एक चैम्बर बड़ा हुआ है, ठीक है, एनीथिंग जो भी आपको लगे, ठीक है, वो आप स्टोरी में डालिए। और ब्रॉडकास्ट में जो डाल रहे हैं वो भी आप स्टोरी में ऐड कर सकते हैं, राइट, बट जो स्टोरी में डाल रहे हैं उसको ब्रॉडकास्ट में नहीं डालना। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ये आती है आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग की। और अगर आपको ऑनलाइन यूज करनी है ना चीजें, डॉक्टर सुधीर का एग्जांपल लूंगा मैं। अगर इंटरनेट की हेल्प लेनी है ना, तो अपना कैरियर बनाने में लीजिए, टाइम वेस्ट करने में नहीं। एड शीरन कहता है कि मैं कभी कोई पर्सनल चीज नहीं डालता। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पर्सनल चीजें ना डालें, दैट इज योर चॉइस, बट इंटरनेट की हेल्प लीजिए टू बिल्ड योर बिजनेस, टू ग्रो। यही टाइम है जिस टाइम पे इंटरनेट बूम पे है। फास्ट नहीं है इंडिया में इतना, बट स्टिल रीचेबल है, हर जगह रीचेबल है, एवरीबडी इज यूजिंग इट। सो रादर देन मेकिंग, यू नो, वेस्टिंग योर टाइम ऑन इट, ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें ये सोचने में कि क्या मैं इस ऐसा प्रोडक्टिव बना सकता हूँ जो मेरे बिजनेस को हेल्प करे, जो मेरे क्लिनिक को हेल्प करे, जो मेरी खुद की ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प करे। क्योंकि इंडिया में आज भी डॉक्टर भगवान है, आज भी डॉक्टर भगवान है, और आज भी एक्टर भगवान है, और आज भी क्रिकेटर भगवान है, क्योंकि इंडिया में ब्रांड सिस्टम ही चलता है। आप ब्रांड होने चाहिए। किसी को नहीं पता डेंटल ग्रीन्स क्या है, किसी को भी नहीं मेरे एरिया में। सबको ये पता है कि डॉक्टर सागर का क्लिनिक कौन सा है, सबको ये पता है कि डॉक्टर सीरी कहाँ पे इम्प्लांट डालती है, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट दिस द नेम ऑफ योर क्लिनिक, इट्स अबाउट नेम ऑफ योर्स, कि आप कितना बड़ा ब्रांड बनाते हैं अपने आप को, ठीक है। तो अपने आप क्लिनिक को भी ब्रांड बनाइए, अपने आप को भी ब्रांड बनाइए, ठीक है, बड़ी चीज कीजिए। अब क्या आ आप जाते इस चीज पे। स्किल्स भी क्या क्या आप ये, आप सब लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्या आप ये बात मान सकते हो कि जो भी मैंने बिल्ड किया हुआ है, आई हैवंट स्पेंट अ सिंगल पेनी एनीवेयर टिल नाउ। Since 2017 आई एम यूजिंग इंटरनेट, राइट सर। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अभी मैंने रील्स तो बनाया नहीं है, मुझे बहुत लोगों ने बोला रील्स बनाने के लिए। अपने चैनल यूट्यूब पे तो है, उस पे जैसे अभी आपका वेबिनार आज है वो आ जाएगा, और हाँ पहले जी। के webinars तो आने वाले हैं। उसके पहले व्हाट्सएपिनार करते थे हम, आपने भी एक व्हाट्सएपिनार किया हुआ है राइट सर, राइट सर। तो अच्छा। वो तो अवेलेबल है नहीं, क्योंकि वो पीपीटी फॉर्मेट्स में है, वो हम राइट सर। ईमेल करते थे। तो इस तरीके से यूज हो रहा है, हर जगह यूज होता है, जितना होता है उतना होता है कि लाइक। बट मैं मेरा क्लिनिक भी करता हूँ, आई एम नॉट दैट रिच, बट इंटरनेट से मेरा क्लिनिक का भी फायदा करके मैं ले रहा हूँ, जो हाँ जी। मैंने कभी बोला नहीं है ना, मैंने कभी उसका फेसबुक पे मेंशन किया। राइट सर। बट मेरा गूगल प्रोफाइल बिजनेस है ना, 2010 से है, ओह। जबकि था नहीं, और लोग बोलते थे कि वो अनएथिकल चीज है। हम्म। जबकि आज की डेट में हर एक जन, जो सीनियर्स थे ना, जो अब बंद करने वाले हैं प्रैक्टिस, उनका भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है अभी, क्योंकि क्रेडिट गोज टू श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने डिजिटल इंडिया बनाया, तो वो 2014 से ज्यादा आया। और अभी तो ऐसी चीज, ऐसी ऐसी चीजें आ रही है ना कि हर पांच पांच बार चीज वो अपडेट करते हैं उनके हाँ जो जी। पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल के है ना, एसईओ बोलते हैं उसको। मैंने हाँ। एस भी सीखा है, मैं पहले ही सीख लिया था, मैंने उसका कोर्स किया, मैंने ओके। सर्टिफिकेशन गूगल से ही किया, बहुत सस्ता है, 1400 रुपीज में हो जाएगा ओके। एसईओ। फिर वेबसाइट भी बनाना सीखा मैंने, वाह। पहले वेबसाइट दूसरों से बनाता था मैं, वो मेंटेनेंस का वगैरह पैसा लेते थे, फिर मुझे बोलते थे कि हैक हो जाएगी। फिर हाँ। उस पे आप पैसे लेना है आपको, तो वो बैंक से कनेक्ट करने के लिए अलग चार्ज लगता है, ऐसे करके वो बहुत पैसे लेते थे। बट राइट। ऐसी जरूरत है नहीं, आप भी सिक्योर वेबसाइट बना सकते हैं, godaddy.com पे हाँ। 400 300 में मिल जाता है आपका खुद का डोमेन नेम, कि राइट। तो एंड सो smile.co.in और smile.in, smile.edu, जो भी चाहिए, राइट। smile.org, ऐसे कोई भी क्लिनिक का नाम से वेबसाइट बन जाएगी गो डैडी से। और वहां ना वो भी है कि कैसे उसको करना है, उसका कोर्स है, वही राइट। था, 2000 रुपीज में है, डिपेंड करता है। तो मिनिमम आई थिंक 6000 तो लगता है स्टैटिक वेबसाइट को, डायनेमिक वेबसाइट को तो 15 25 75 चार्ज करते हैं। राइट। रील्स मैंने नहीं बनाया, रील्स के लिए अभी रुका हूं मैं,
राइट। पता नहीं बनाऊंगा कि नहीं, देखते। एंड यू आर ऑल्सो लाइक जन्म बोलते हैं ना, बर्थ ऑफ द प्रैक्टिस मैनेजमेंट कोच, अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। इंडिया का हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। नहीं फेमस सर, जो यू आर राइट, बिल्कुल सही बात है। जो एवरीवेयर। भी वर्क करे सर, एनीथिंग दैट वर्क्स, इट्स वंडरफुल दैट आप अपना खुद का वेबसाइट बना रहे हैं आराम से। इट्स वेरी ट्रिकी थिंग थिंग टू लर्न। और इससे कितना अमाउंट बचता है, क्योंकि सही कह रहे हैं आप। जो भी आते हैं वेबसाइट बनवाने के लिए, डेवलप करने के लिए, फिर उसको बोलते हैं यार पर ईयर मेंटेन होगा, पर मंथ मेंटेन होगा, चेंजेस करोगे तो अलग चार्ज लगेंगे। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ये सब चीज़ें सीखें। आजकल तो एआई इज समथिंग जो डेंटिस्ट्री के अंदर आ रहा है, तो काफी लोग उस चीज के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो एआई के बारे में भी जानकारी हमको रखनी चाहिए कि कैसे कैसे डेंटिस्ट्री में इट विल हेल्प, क्योंकि देयर आर प्लेटफॉर्म जो एआई का ऐसे बना रहे हैं जो मार्केटिंग आपकी करके देंगे। तो यू शुड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। सो कमिंग बैक टू दिस दिस स्लाइड स्पेसिफिकली। सो व्हाई डू आई लव दिस स्लाइड? क्योंकि वर्कफ्लो जो है ना, वो धीरे धीरे करके मैंने सीखा है, और मैं चाहता हूँ आप लोग जल्दी सीखें। जल्दी क्यों सीखें? क्योंकि ये चार चीजें जो मैं आपको इस पे लिखा हुआ है, कि फोन पे कैसे बात हो रही है क्लिनिक में, फ्रंट डेस्क पे कैसे बात हो रही है, मैनेजमेंट कैसे हो रही है, और कोविड के बाद से देर आर पीपल आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, कि स्टरलाइजेशन कैसे हो रही है। इन चार चीजों की वजह से पेशेंट बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं, या फिर क्लिनिक को रिजेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद गायनेकोलॉजिस्ट के पास गया था जब अपनी वाइफ को लेके, तो देयर वाज ए लेडी ऑन द फ्रंट डेस्क जो शी डिडंट इवन स्टैंड, शी डिडंट इवन बॉदर टू लुक अस इनटू द आई एंड टेल अस कि मैम है या नहीं है। शी वाज ऑन द फोन। ठीक है, एंड देन आई वेंट टू अनदर अनदर पर्सन फॉर सम स्कैनिंग एंड ऑल। तो वहां पे उन्होंने जानबूझ के टीम ऐसी रखी हुई थी जो इतनी एक्टिव थी कि देवर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, कि पीपल वर वेटिंग फ्रॉम लॉन्गर आवर्स, तो उनसे पूछना कि शुड वी गेट यू समथिंग। ठीक है, आप कंफर्टेबल हैं, एवरीथिंग इज ओके, आपको पानी चाहिए, एसी ठीक है, आपको ज्यादा गर्म तो नहीं लग रहा, आपको ज्यादा ठंडा तो नहीं लग रहा, यू वांट टू गो टू वॉशरूम, वी हैव द फैसिलिटी, यू वांट वाईफाई, वी हैव द फैसिलिटी। सो देयर आई थॉट कि ये कितना बड़ा डिफरेंस है, कि उस गायनेकोलॉजिस्ट के पास कोई भी नहीं था। राइट, और हमने भी उनको रिजेक्ट किया इस वजह से। और इनके पास इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? क्योंकि फ्रंट डेस्क पे जो चीजें संभाल रहे हैं, चाहे आपका असिस्टेंट ही हो, राइट, दीज आर द पीपल जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड फैमिलीज से नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा एजुकेटेड फैमिलीज से नहीं आते हैं। तो इनको आपको ट्रेन करना होता है। दे आर हम्बल इन देयर अप्रोच, राइट। तो बहुत ज्यादा एजुकेटेड ना होने की वजह से कई बार इनको पता नहीं होता है दैट हाउ डू यू हैव टू ग्रीट पीपल। यू आर द पर्सन हु इज द लीडर। आप उनको सिखाइए कि व्हेन द पेशेंट विल कम, यू हैव टू स्टैंड अप, यू हैव टू मेक श्योर दैट द पेशेंट सिट्स, यू इवन दो पेशेंट विल सिट themselves। आपको बोलना है सर मैम अंदर है, आप प्लीज बैठिए, राइट, डू यू नीड वाटर, ऑल दो वाटर सामने ही लगा हुआ है और लिखा भी हुआ है कि वाटर यहाँ पे, बट स्टिल यू हैव टू आस्क दैट यू डू नीड वाटर, यू हैव टू सर्व देम प्रॉपरली, राइट, यू हैव टू आस्क देम कि पेन किलर आप लेंगे क्या, ठीक है, आपको दर्द तो नहीं है। अगर वेटिंग पीरियड है तो उनको ऑनेस्टली बताएंगे कि इतना वेटिंग पीरियड है, आप जाना चाहते हैं तो अभी थोड़ी देर वेट कर लीजिए, वरना वी हैव वाईफाई एंड वी हैव डिफरेंट ऑप्शन जिससे आप कंफर्टेबल हो सकते हैं। और वी हैव चार्जर इन आवर क्लिनिक, जो आप मल्टीपल चार्जर अवेलेबल है इन केस आपको फोन की जरूरत है। तो दीज आर द थिंग्स जो क्लिनिक में आपके होनी चाहिए। और आपका असिस्टेंट उतना कैपेबल होना चाहिए कि वो इस तरीके से बात करे कि पेशेंट रिटेन हो, पेशेंट बैठे, पेशेंट फील करे कि मैं कंफर्टेबल कराया जा रहा हूँ, राइट, और इतना कराया जा रहा हूँ तो डॉक्टर साहब तो और अच्छे होंगे। सिमिलरली ऑन फोन, देर आर पीपल जो कहते हैं कि फोन पे कॉल्स आते हैं और लोग विंडो शॉपिंग करते हैं। आई अंडरस्टैंड, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि फोन पे आप इतने पोलाइट हो जाएं कि आप अपने चार्जेस बताने लगे। आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि फोन पे भी ग्रीट करने का एक तरीका होता है, राइट। आई नो पीपल जिनके पास इतने खराब असिस्टेंट हैं, जो फोन पे बात करके ये भी नहीं बोलते कि हेलो गुड आफ्टरनून मैम डेंटल ग्रीन्स, गुड गुड मॉर्निंग मैम डेंटल ग्रीन्स। राइट, आप होटल्स में बात करते हैं, आप हमेशा याद रखिए कि आप सर्विस सेक्टर में हैं। तो जो भी लोग सर्विस सेक्टर में है, बीट जिम, बीट फाइव स्टार होटल्स, जिस लेवल पे आप सोच सकते हैं कि मुझे इस लेवल पे अपना क्लिनिक लेके जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर होटल सेक्टर में सबसे बड़ा सेक्टर सेवन स्टार होटल है, तो सेवन स्टार होटल में जाइए और देखिए उनकी टीम कैसे काम करती है, देखिए कि वो कैसे क्लीन रहते हैं, देखिए कि वो कैसे फोन उठाते हैं, देखिए कि वो कैसे ग्रीट करते हैं। तो आप भी अपनी टीम को उस लेवल पे ग्रीट करेंगे, उस लेवल पे ट्रेन करेंगे कि वो उस तरीके से ही फोन उठाए। तो अगर मैंने देखा कि एक सेवन स्टार होटल का या फाइव स्टार होटल का रिसेप्शनिस्ट फोन उठा के पहले मुझे ये बोलता है गुड मॉर्निंग सर, दिस इज दिस प्लेस एंड हाउ मे आई हेल्प यू, तो मैं अपने असिस्टेंट को, चाहे उसको इंग्लिश ना आती हो, सिखाऊंगा कि आपको ये लाइन बोलनी है, राइट, आपको ग्रीट करना है, आपको ये नहीं करना कि बस फोन उठाया, हेलो,
हाँ जी, ये नहीं करना। ठीक है, तो देर आर थिंग्स जो आपको सिखानी है, ये आपको अलग बनाती है दूसरे प्रैक्टिशनर से, आपकी टीम को। ठीक है, और तभी चीज बेटर होनी शुरू होती है। ओके, तो अब आ जाती है बात मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट बात क्यों लिखी है मैंने? अब आपने समझ लीजिए कि गेन कर लिए पेशेंट, क्रक्स ऑफ द स्टोरी पे आते हैं। गेन करने के लिए क्या बोला था मैंने? आप रीच कर गए, आप मिले लोगों से, राइट, आपने अच्छे से अपने कार्ड्स दिए, राइट, पेशेंट ने इम्प्रेस हुए, पेशेंट ने बोला हम आएंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस शायद किसी अपने डेंटिस्ट के साथ अच्छा नहीं है। अगर अच्छा होगा तो वो कभी नहीं आएगा आपके पास। तो हो सकता है कि उनको कोई पुराना ट्रॉमा है, वो आपके पास आने को राजी है, अब वो आपके पास आ रहा है, राइट, आपने मार्केटिंग अच्छी कर ली है, व्हाट्सएप पे देख लिया उसने मैसेज, राइट, आपके पास एक बार आ चुका है और उसने व्हाट्सएप पे मैसेज देखा है, वो फिर से आ रहा है। ठीक है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, फ्रंट डेस्क भी अच्छा काम कर रहा है, वो आ रहा है तो उसको अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। पर ट्रीट करने के बाद, बिठाने के बाद, अंदर जो आपके पास रिसेप्शनिस्ट है, असिस्टेंट है, या बाहर एक ही असिस्टेंट है, वो अंदर आके अगर ये बोलता है कि सर बाहर दो पेशेंट हैं, क्या बोलना है, और आप बोलते हैं कि पेशेंट को बोलो 15 मिनट वेटिंग पीरियड होगा, और वो बाहर जाके अगर ये बोलता है कि बस 2 मिनट लगेंगे, तो 5 मिनट बाद पेशेंट वहां से उठ के जा सकता है। तो मैनेजमेंट शुड बी प्रॉपर। मेरे क्लिनिक में मैनेजमेंट कैसी है कि सुबह आप आएंगे, सबसे पहले देखेंगे डायरी के अंदर कि किसका अपॉइंटमेंट पहला है, किसका सेकंड है, किसका थर्ड है, मुझे बताएंगे क्या क्या काम होना है, राइट। अगर दो अपॉइंटमेंट कोलाइड हो रहे हैं, बहुत पास पास, तो उनको बताएंगे कि आप थोड़ा सा पहले आइएगा, थोड़ी सी बाद में आइएगा, राइट। अगर बाहर वेटिंग में ओपीडी पेशेंट ज्यादा आ गए हैं, तो आप एसोसिएट डेंटिस्ट को बताएंगे, और वो दूसरे चैम्बर में जाके उन पेशेंट्स को बुला के एटलीस्ट डायग्नोसिस बनाएगा, जब तक मैं अपना पेशेंट कंप्लीट करूं। क्यों? पेशेंट को 15 मिनट से ऊपर वेट ना तो कराना है, ना पेशेंट का 15 मिनट से ऊपर वेट करना है। अगर 15 मिनट हो गए हैं, 10 बजे पेशेंट का टाइम था, 10:15 हो गए हैं, तो या तो मेरा एसोसिएट डेंटिस्ट जाके उसे करेगा, या मैं अगर कंप्लीट कर सकता हूं अपने काम, तो मैं कंप्लीट करके अब बुलाऊंगा। और 15 मिनट हो गए हैं, पेशेंट नहीं आया है, तो पेशेंट को फोन करा जाएगा और बोला जाएगा कि सर आपका टाइम 10 बजे था, 10:15 हो गए हैं, आप आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर पेशेंट नहीं आ रहा है तो उनको स्टर्न बट पोलाइटली बोला जाएगा कि सर इन केस आप ऐसे कभी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो, पोस्टपोन हो, चेंज हो, तो प्लीज लेट अस नो प्रायर, सो दैट वी कैन आस्क समवन एल्स टू कम, राइट। सो दैट अब मेरे हर पेशेंट को, क्योंकि मेरा एक क्लिनिक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आता है, पीपल टेक मी फॉर ग्रांट यूज टू टेक मी फॉर ग्रांटेड इन द इनिशियल पीरियड, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से देखा था। तो उनको लग रहा था ये प्रोफेशनल सेटअप नहीं है, इस पे किसी भी टाइम जाओ, यहाँ पे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं भी जाओ तो चलेगा, राइट। तो मैंने ये चीज बनाई 10 साल में, 5 साल के अंदर बन गई थी मेरी, कि मेरे क्लिनिक पे बार्गेनिंग नहीं होगी, मेरे क्लिनिक में कंसल्टेशन बाहर जमा होगी, मेरे क्लिनिक पे कंसेंट फॉर्म साइन करना पड़ेगा, मेरे क्लिनिक पे आप बदतमीजी नहीं करेंगे, मेरे क्लिनिक पे आप टाइम पे आएंगे, आपको टाइम पे ही अंदर भी बुलाया जाएगा। अपोजिट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मैं भी रेसिप्रोकेट करूंगा, मैं भी आपसे बदतमीजी नहीं करूंगा, मैं भी आपको वेट नहीं कराऊंगा, मैं भी आपको जो है हर चीज प्रॉपर दूंगा, तो सेम चीज चलेगी। तो वर्क फ्लो जब बनता है, जब फोन अच्छा हो, फ्रंट डेस्क अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छी हो, राइट, मेरे टीम मेंबर्स को पता होता है कि सर ये गड़बड़ हो सकती है, तो वो तुरंत बताते हैं कि सर अभी आपको टाइम लगेगा इस केस में, ऑर्थोडोंटिस्ट आने वाले हैं, हम उसको उस चैम्बर में करवा दें, हाँ जी फटाफट करा दो। सिमिलरली फॉर स्टरलाइजेशन, अब पेशेंट नहीं चाहता किसी के साथ चिपक के बैठना, अब पेशेंट नहीं चाहता कि कोई खांस रहा हो तो वो उसके पास में हो, अब पेशेंट नहीं चाहता कि एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ लगी हो, पेशेंट यही चाहता है कि थोड़ा सा स्पेस हो, थोड़ा डिस्टेंस हो, राइट। स्टरलाइजेशन उनके सामने आप नहीं कर सकते हैं, राइट, उनको ये फील नहीं करा सकते हैं कि स्टरलाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही है। पर जब द वे your assistant clean the chair in front of patient, the way the spittoon is cleaned every time and the patient sits on it and see the cleanliness, with the way that your assistant is dressed up, the way the gloves are there, the way the head cap is there, right, the way the shoe cover is there, okay, the way the other patients asked to either remove the shoes or cover their shoes with shoe cover, ये सब चीजें, ये सब साइंस, ये सब चीजें छोटी छोटी जो लगी होती है क्लिनिक पे, इससे पेशेंट को फील होता है कि यहाँ पे चीजें पैटर्न में चलती हैं, स्टेलाइजेशन मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। इनिशियल पीरियड में 1 से 2 साल जब मेरे क्लिनिक पे सब कुछ मैं ही मैनेज कर रहा था, तो पेशेंट पूछते थे कि यहीं पे होगा इम्प्लांट, आप स्टेलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, आपके पास ऑटोक्लेव है? पेशेंट के पास बहुत नॉलेज होती है, और मैं बताता था कि सर ये ऑटोक्लेव है, ये है, ये वो है। बट जब जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, आप इन चीजों को इतना
इतना पर्टिकुलर कीजिए, इतना अच्छा कीजिए कि पेशेंट को पूछने की जरूरत ही ना पड़े। पेशेंट को फील हो, खुद ही फील हो कि यहाँ पे तो मेरे सामने कॉटन भी अंदर से बैग से निकाली जा रही है, इंस्ट्रूमेंट भी बैग से निकाले जा रहे हैं, तो सिलेक्शन होगी ही। राइट, तो ये वर्क फ्लो आपका जब बनता है, इससे पेशेंट इंप्रेस होता है। मानेंगे आप कि एक पेशेंट मेरे पास सिर्फ इसलिए रिटेन्ड है, एंड दैट इज सच ए ब्रिलियंट पेशेंट, कि आप उसको 50,000 बोलो वो 50,000 देके जाएगा, आप 1 लाख बोलो 1 लाख देके जाएगा, सिर्फ इसलिए कि सर, आप जब काम करते हैं ना, तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स एक तरीके से ट्रे पे होते हैं, ट्रे का कवर होता है। और मैंने देखा है कि और डेंटिस्ट का तो मुझे नहीं पता, पर मैंने कभी देखा नहीं कि आप अलग से एक स्टर्लियम रखा होता है, राइट, स्प्रिट रखी होती है डेपेंडिश में। जो भी चीज आपको बर हो, फाइल हो, निकाल के डालनी होती है, आप उसमें डालते हैं। ऐसे ब्लड नहीं स्पिट होता, ऐसे क्लीन। अगर कोई चीज का काम खत्म हो गया तो आपका असिस्टेंट उसको साइड में ले जाता है, ऐसा नहीं कि ट्रे पे ही बहुत ज्यादा फैल जाए। आई लव दिस। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत अच्छे से काम करते हैं। राइट, और उस पेशेंट का मैंने काम किया है और काम फेल भी हुआ है, बट स्टिल द पेशेंट इज रिटेन्ड। वाई? क्योंकि उसको मेरा बिहेवियर, मेरी टीम की क्लीनलीनेस, स्टरलाइजेशन से इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ा हुआ है। तो इसलिए उस चीज पे ध्यान दीजिए, उसको छोटा मत समझिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं स्किप कर रहा था माइंड से, वो ये है कि आपका क्लिनिक अंदर से कैसा दिखता है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, डार्क कलर्स अवॉइड करें। डार्क कलर के आपके अगर अगर लाइटिंग नहीं है क्लिनिक में, कहीं पे बहुत लाइटिंग अच्छी रखे क्लिनिक पे, लाइटिंग क्लिनिक को बड़ा करती है। वाई डू दीज ऑल सेलिब्रिटीज एंड एवरी कन्विक्ट गो टू कोट ऑन इन वाइट शर्ट्स, वाइट कुर्ताज, वाइट, everyone is going on white? Why? Because it creates an impression, राइट। तो एप्रन आपकी टीम के पास होना चाहिए, आपके पास भी होना चाहिए। स्क्रब पहना हुआ है फिर भी चेयर पे होना चाहिए, राइट। लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, राइट। ये सब अंदर की चीज हुई। क्लीननेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी चेयर के ऊपर स्केलर भी लगा हुआ है और बर भी लगा हुआ है और एंडोमीटर भी लगी हुई है, सब अंदर होना चाहिए। राइट, चैम्बर के ऊपर, ऊपर चेयर के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ काम की चीजें होनी चाहिए। और बाहर से क्लिनिक कैसा लगता है वो कैसे पता लगेगा? द ओनली थिंग विच यू हैव ऑन विच यू कैन इन्वेस्ट इज योर बोर्ड, राइट। ऑब्वियसली आपको क्लीननेस तो रखनी है, पर आपका बोर्ड कितना इंप्रेसिव है और कितना ऑनेस्ट है, वो भी चीजों को मैटर करता है। आप किस तरीके से लाइटिंग रखते हैं, किस तरीके की आपकी टैगलाइन है। मुझे कई लोग पूछते हैं कि सर क्लिनिक का नाम क्या रखें। नाम वो रखिए जो आपके क्लिनिक को आइडेंटिफाई, आपके ब्रांड को आइडेंटिफाई करता है। मैंने अपने क्लिनिक का नाम डेंटल क्लिनिक रखा क्योंकि मैं नाइफ था, मुझे नहीं पता था क्या नाम रखा जाता है। आज अगर मैं अपने क्लिनिक का नाम रखता हूँ, तो शायद उसका मैं कुछ ना कुछ रूट कनाल से रिलेटेड या तो होगा या टैगलाइन होगी, क्योंकि वो मेरा फेवरेट काम है, मैं क्लिनिक पे वही करता हूँ। ठीक है। अगर डॉक्टर सीरी क्लिनिक ओपन करती हैं एक और, तो उनका शायद इम्प्लांट या सर्जरी से रिलेटेड कुछ ना कुछ नाम होगा, राइट। क्योंकि हम वही करते हैं, हम दोनों वो काम करते हैं, बाकी वो काम हमारे एसोसिएट डेंटिस्ट करते हैं, राइट। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज सीखें कि आपको बाहर से क्लिनिक अच्छा रखना है, साफ सुथरा रखना है। बहुत इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कम इन्वेस्ट कीजिए धीरे धीरे करके, बट विजन रखिए कि अब अगले साल तक मैं ये वाला बोर्ड मॉडर्न लग रहा है, ये लगवा लूंगा। ठीक है, अगले साल तक मैं ये लाइटिंग अपनी और ऐड करा लूंगा क्लिनिक पे, या करा लूंगी, ये इंस्ट्रूमेंट्स और ये स्किल में सीख लूंगा। ठीक है, तो जिस पे ज्यादा ध्यान जाएगा चीज पे, वही ग्रो करती चलेगी, राइट। सो सॉरी ये। ओके। ओके, अब इस पॉइंट पे आते हैं। ऑलरेडी मैंने एक बार डिस्कस किया आपसे अभी कि 15 मिनट रूल हमारे क्लिनिक का है, कि आपने अपनी मार्केटिंग अच्छी कर ली, राइट, आपने पेशेंट को बुला लिया, पेशेंट अंदर आ गया, ठीक है, पेशेंट ने वेटिंग एरिया में बैठ गया। उसके बाद आपने मैनेजमेंट भी अच्छी कर ली कि आपने 15 मिनट में पेशेंट को कहीं ना किसी चेयर पे बिठा दिया, ताकि उसका एटलीस्ट ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस बन सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास अभी, अब आप करेंगे कैसे? आप बोलेंगे सर मेरे पास सिंगल चेयर है, मेरे पास मल्टीपल चेयर नहीं है, देन व्हाट? अगर आपके पास मल्टीपल चेयर है तो ऑब्वियसली आप एसोसिएट डेंटिस्ट यूज कर सकते हैं। आप असिस्टेंट को बोल सकते हैं कि उनको चैम्बर में बिठाइए या दूसरी चेयर में बिठाइए, मैं अभी देखता हूँ या देखती हूँ। या आपने इंटर्न या जो भी एसोसिएट डेंटिस्ट आपने रखा हुआ है, उसको बोल सकते हैं कि आप चेक कीजिए डॉक्टर साहब, मैं देखता हूँ अभी या देखती हूँ। बट अगर सिंगल चेयर है, तो बहुत जरूरी है कि आप ये जानें कि अगर आपने किसी पेशेंट को बुलाया है, तो वो अपने टाइम पे आए। पहली चीज, आपको पता हो कि कितने टेन्योर में काम खत्म हो जाएगा, और उसके बाद की नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हो। और अगर गलती से ऐसा हो जाए कि टेन्योर खत्म नहीं हो रहा है बट नया पेशेंट आ गया, तो आपकी चॉइस ये होगी कि अब आप उस केस को जल्दी खत्म कर सकते हो या नहीं।
अगर आप खत्म खत्म जल्दी कर सकते हो, आपको लग रहा है एक्सिस ओपनिंग हो गई है, राइट, और मैंने काफी बीएमपी कर दी है, ठीक है, पेशेंट का पल बंधन नहीं है, मैं आज सिंगल सिटिंग नहीं करता हूँ, ऑब्जर्वेशन नहीं करता हूँ, कुछ न्यू पेशेंट मारे, वेटिंग ज्यादा हो जाएगा, तो मैं बंद कर देता हूँ, राइट। तो आप बंद कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो सकता है, आप इम्प्लांट के बीच में है, किसी केस के बीच में है, कंसल्टेंट के बीच में है, कुछ भी है, तो ऑनेस्टली असिस्टेंट को बताइए और खुद बात कीजिए पेशेंट से, क्योंकि असिस्टेंट बताता है बाहर, तो पेशेंट कई बार ऑफेंड होता है कि मैं आया हूं, मैं तो वापस नहीं आ पाऊंगा, मैं दूर से आया हूँ, राइट। तो आप पेशेंट को अंदर बुलाइए चेंबर में, क्लिनिकल एरिया में, और दूर से उसको बताइए कि सर देखिए अभी इस केस में टाइम लगेगा, ठीक है, आप आज अपॉइंटमेंट के बिना आए हैं तो मुझे पता नहीं था आप आ रहे, राइट, तो या तो आप वेट कर ले थोड़ी देर, इतना टाइम ऑनेस्टली लगेगा, अगर आपको 15 मिनट लगेंगे तो 20 मिनट बता के चलिए, एक्स्ट्रा बता के चलिए, राइट। तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है। और अगर आप, हमारे पास वी हैव एवरीथिंग टू entertain you, you can use our Wi-Fi, right, and you can we have a TV in our waiting area, we have magazines, whatever you wish to, you if you need coffee we'll have coffee machine, right। तो अगर अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा टाइम लगेगा पेशेंट पास में से, तो आप उनको ये भी ऑफर कर सकते हैं कि यू गो टू योर होम सर, ठीक, आप आराम से बैठिए, मैं आपको कॉल करवा दूंगा, आप तब आइएगा, राइट। पर पेशेंट को क्लिनिक के अंदर ज्यादा देर वेट बिना बताए मत कराइए, या तो उनको पता हो कि अभी 20 मिनट लगेंगे, और पता नहीं है तो उनको बताइए ऑनेस्टली। पेशेंट वेट नहीं करना चाहता आजकल के टाइम में, और ये बहुत बड़ा फैक्टर बनता है पेशेंट को शिफ्ट करने का, पेशेंट कैन इजीली शिफ्ट टू अदर पीपल, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इट्स ऑलमोस्ट 4 या 15 मिनट्स, मैं चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस भी मैं ले पाऊँ। अगर इन केस हम अभी क्वेश्चन नहीं ले पाते, तो आप प्लीज मुझे डीएम कर सकते हैं, डॉक्टर सुधीर को कर सकते हैं, मेरे तक बात पहुंच जाएगी तो मैं आपको जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगा, राइट। ओके, सो If कम्युनिकेशन। you have time, you can extend, no problem. There is ओके, no. ओके सर। सो कम्युनिकेशन इज समथिंग जो ये भी चीजों को, बल्कि मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले यही चीजों को गेन और रिटेन कराती है। आप बात कैसे करते हैं कहीं भी अपने बारे में, क्लिनिक के बारे में, राइट, कन्वर्सेशन कैसे होती है, कंसल्टेशन कैसे होती है, ट्रीटमेंट प्लानिंग आप कैसे बताते हैं, राइट, यही सब चीजें होती हैं जो आपको पेशेंट रेफर कराते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो याद रखिए, ये दिमाग में से होड़ छोड़ दीजिए कि पेशेंट बाहर आया है और चार्जेस पूछ रहा है, राइट, और कंसल्टेशन चार्जेस नहीं दे रहा है, भगा दो उसको। ये एक अभद्र बिहेवियर है जो डॉक्टर्स पे सूट नहीं करता है। आप पे सूट ये करता है दैट यू आर ए जेंटलमैन, डॉक्टर साहब आपके नाम के आगे रखता है, वकील साहब आपके नाम के आगे रखता है, सीए साहब आपके नाम के आगे रखता है, तो दीज आर प्रोफेशनल थिंग्स, ठीक है। तो इनसे लोगों को सर्विस की डिमांड होती है, राइट। अब एक्सप्लॉइट नहीं होना है, पर किसी को एक्सप्लॉइट करना भी नहीं है। आप, पेशेंट अगर, असिस्टेंट अगर आके बात करता है, मेरे यहाँ क्या होता है, चाहे फोन पे हो ये बात, चाहे पेशेंट आ गया हो क्लिनिक पे, अगर वो ये पूछता है कि सर हमें बताइए कि चार्जेस कितने होते हैं इस चीज के, तो असिस्टेंट्स को ये अलाउड है सिर्फ बोलना कि सर मुझे सिर्फ कंसल्टेशन चार्जेस पता है, मुझे वही अलाउड है बताने, अगर आपको इससे फर्दर बात करनी है यू कैन टॉक टू सर। अगर फोन पे है तो यू कैन टॉक टू सर व्हेन सर इज फ्री। और अगर पेशेंट आया हुआ है तो पेशेंट असिस्टेंट मेरे पास आता है, बात करता है, सर ऐसे ऐसे पेशेंट आया हुआ है, तो क्या करना है। अगर मैं फ्री हूँ तो मैं बोलता हूँ 2 मिनट बिठाओ, अभी अंदर भेज देना। तो मैं पेशेंट को अंदर बुलाता हूँ, बिठाता हूँ, राइट। अंदर पेशेंट आके मेरी पर्सनैलिटी को देखता है, पेशेंट अंदर आके मेरे क्लिनिक को देखता है, पेशेंट अंदर आके मेरे चैम्बर को देखता है, उसके बाद मुझे बताता है कि मुझे ये चीज़ करानी है, ऐसे करानी है, ये होना है, वो होना है। मैं पेशेंट से सिंपल 2 मिनट्स की कन्वर्सेशन करता हूँ, नॉट कंसल्टेशन, बिकॉज कंसल्टेशन इज पेड। 2 मिनट की कन्वर्सेशन में क्या होता है, सर जो आप बता रहे हैं वो हो जाएगा, राइट, क्लिनिक पे, पर वो कैसे होगा, कितना होगा, होगा भी या नहीं होगा। आप बोल रहे हैं मैं रूट कनाल कराने आया हूँ, उसके चार्जेस जानना चाहता हूँ, हो सकता है रूट कनाल ना हो सकता है दांत निकालना पड़े, हो सकता है दांत बच जाए, रूट कनाल ना हो, राइट। तो देयर कैन बी वेरियस एस्पेक्ट्स। और रूट कनाल कौन से टाइप की होगी, ऐसी रूट कनाल भी है जिसके मैं 5,000 चार्ज करता हूँ, ऐसी भी है जिसके 10 चार्ज करता हूँ। तो आपका कैसा केस है, मैं आपको अभी यहाँ से बता दूं तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, रेंज आप जानना चाहते हैं तो बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है रेंजेस का, और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि हमारी क्लिनिक पे 5 से 10 हज़ार रुपये शुरू होती है रूट कैनाल विदाउट राउंड, समझ लीजिए मैं अगर मैंने बोला, ठीक है। तो मैंने इस कन्वर्सेशन में क्या किया, उनको बताया कि क्यों मैं उनको चार्जेस नहीं बता सकता पर्टिकुलर,
क्या मेरी टीम, पहली चीज बताई। दूसरी चीज, फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो ये रही रेंज, और क्यों रेंज है, सिंपल। और थर्ड थिंग मैं बोलता हूँ, इफ यू वांट टू नो अबाउट द प्रिसाइज थिंग, यू हैव टू गेट ऑन टू द चेयर। चेयर पे हम चेक करेंगे, टाइम देंगे, अपनी नॉलेज से आपको चीजें बताएंगे, राइट। जरूरत होगी तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एक्सरे लेंगे, और इन सबका चार्ज होता है सर। कंसल्टेशन का चार्ज होता है, एक्सरे का चार्ज होता है, क्योंकि हम आपको एक वैल्यू बेस्ड चीज बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी चॉइस होगी दैट यू वांट टू गेट योर ट्रीटमेंट डन और नॉट। तो 90% ऑफ द पेशेंट्स आर कन्विंस्ड। 10% अगर ऐसे हैं भी जो कन्विंस नहीं है, दे कैन नॉट राइट ऑन माई गूगल पेज, और दे कैन नॉट गॉसिप अबाउट इट कि उनकी टीम में तो असिस्टेंट ने बाहर से ही भगा दिया, कि कंसल्टेशन के बिना देखते ही नहीं है डॉक्टर साहब, हमसे पानी भी नहीं पूछा, हमसे मिले भी नहीं। ये नहीं होने वाला, राइट। तो क्योंकि मैं वो अपनी छवि बनाने नहीं चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आई वॉन्ट टू बी राइट, आई वॉन्ट टू बी यू नो, मैं सही आदमी बन के रहना चाहता हूँ सबकी नजरों में, वो कभी नहीं हो सकता। तो ये भी बात जान के रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं चाहता हूँ सब लोग ये जान लें कि आप कितने भी नए या पुराने प्रैक्टिशनर हो, हर कोई आपसे खुश नहीं होगा। Everyone will not, every person will not be happy with you and your practice. किसी ना किसी को कुछ ना कुछ परेशानी होगी। किसी को लगेगा आपके चार्ज ज्यादा है, किसी को लगेगा आपका बिहेवियर खराब है, किसी को लगेगा आपके यहाँ वेटिंग बहुत है, किसी को लगेगा कुछ ना कुछ लगेगा, आप पेन करते हैं, कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी को लगेगा। आपको बेस्ट पता है ऑनेस्टली कि आप क्या करते हैं, और आप किस चीज को कैसे कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। आपको लाइफ बताती रहेगी, जब तक क्राउन निकलते रहेंगे आपको लाइफ बताती रहेगी कि आपके क्राउन पर अच्छी नहीं है। पेशेंट को पेन होता रहेगा आफ्टर रूट कनाल, आपको लाइफ बताती रहेगी कि रूट कनाल इम्प्रोवाइज करो। वो आपकी चॉइस है कि आप कैसे उसको सीख रहे हैं। पर दुनिया में जो बाकी लोग आपको जज कर रहे हैं ना, वो करते रहेंगे, आप बेस्ट हो जाएंगे तब भी। तो अपने आप को बेस्ट बनने की कोशिश कीजिए, उनकी तरफ मत देखिए। मेरे साथ ऐसा भी हो चुका है कि पुराने 10-10 साल पुराने पेशेंट्स जो मेरे साथ लॉयल थे, वो सिर्फ इसलिए शिफ्ट हो गए क्योंकि अब उनको लगता है कि मेरे क्लिनिक पे चार्जेस काफी ज्यादा हो गए हैं। पर 10 साल में वो उन चार्जेस पे नहीं काम कर सकता जिन पे 10 साल पहले कर रहा था, तो चार्जेस तो बढ़ेंगे। तो लॉयल पेशेंट आपके साथ सिर्फ दो ही हैं, जो आपकी टाइम की वैल्यू कर रहे हैं, उसी टाइम पे आते हैं जिस टाइम आप बुलाएं, और बिल्कुल टाइम के पक्के आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, और आपके चार्जेस पे डाउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि चार्जेस अगर मांग रहे हैं तो उसी लेवल का काम करेंगे। अगर कोई चार्जेस पे डाउट कर रहा है, चाहे वो पुराना पेशेंट हो चाहे नया, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप बहुत जल्दी झुक जाएं। बार्गेनिंग कोई करता है तो हम 5% डिस्काउंट अपने पेशेंट को बोलते हैं कि विल डू इट ऑन कंप्लीट चार्जेस। अभी एक पेशेंट आया, बोला कि मेरी एक्सट्रैक्शन कर दीजिए, एक रूट कनाल मैंने एक आसपास के डॉक्टर से कराई थी, आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है, बहुत दर्द है, ऑल ऑफ दैट। हमने कहा कर देंगे, चार्जेस ये होंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कर दीजिए, कर दी। आफ्टर द एक्सट्रैक्शन पेशेंट बोल रहा है कि वो आपने बोला था 5% आप रिड्यूस कर देंगे। मैंने बोला सर 5% रिड्यूस तब होंगे जब टोटल ट्रीटमेंट होगा। मैंने आपको बताया था कि 5% कंसल्टेशन पे रिड्यूस नहीं हो सकता। 500 रुपये की कंसल्टेशन में 5% में रिड्यूस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा। और सिर्फ एक्सट्रक्शन चार्जेस पे नहीं रिड्यूस हो सकता। जब आप टोटल काम कराएंगे, दैट इज आपका एक्सट्रक्शन हुआ, फिर आपका दांत रिप्लेस हुआ जो आपकी प्लानिंग में था, जो आपको स्टार्टिंग से बताया गया था, जब ब्रिज लगा, जब टोटल बिल बनेगा उसमें से 5% में रिड्यूस करूंगा। तो अगर मैं कम से कम 10,000 का काम कर रहा हूँ या 5,000 का काम कर रहा हूँ, तो उसका 5% क्या हुआ, 250 रुपये। तो मैं तुम्हें 300 भी रिड्यूस कर दूंगा, कोई बात नहीं। मगर अगर 500 रुपये में से रिड्यूस करना हो, नहीं। और अगर पेशेंट इस पे बहस, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सर आप किस बिजनेस में हैं? वो पेशेंट का खुद का फार्मेसी का बिजनेस था। मैंने कहा आप फिर फार्मेसी के बिजनेस में, आपके बिजनेस में 10% डिस्काउंट को इतना फैंसी बनाया जाता है कि इतने बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं, और आप मुझसे 5% डिस्काउंट पे कह रहे हैं कि ये तो बहुत कम है, वो भी आधे ट्रीटमेंट का। तो आप सोचिए खुद ही सर, आप बिजनेस आप भी करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो इन सॉफ्ट लैंग्वेज आपको बात करनी आनी चाहिए, राइट। डरिएगा मत कि कभी कोई पेशेंट चला गया, अगर गया है तो उससे बेहतर आएगा। ऐसे ऐसे पेशेंट है मेरे पास जो खुद की फैमिली में से दो भाई हैं, एक भाई मेरे पास ही आता है, एक भाई नहीं आता है, कोई बात नहीं, राइट। तो पेशेंट अगर कोई जा रहा है, अगर आपकी गलती की वजह से जा रहा है, तो उस गलती को सुधारिए। देखिए कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि पेशेंट को पेन हो रहा है या पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसको सुधारिए। और अगर इस गलती, आपकी कोई गलती नहीं है, पेशेंट सिर्फ इसलिए जा रहा है कि आपके चार्जेस बढ़ गए हैं, या आप बार्गेनिंग को बहुत ज्यादा नहीं अलाउ कर रहे हैं, 5% से ज्यादा
नहीं कर रहे हैं, राइट? या पेशेंट चाह रहा है कि मैं मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट हो, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा ट्रीटमेंट करो, चाहे वो एथिकली करेक्ट ना हो। ऐसी चीजों पे अगर पेशेंट जा रहा है, जाने दीजिए। वो या तो घूम के आपके पास ही आएगा, या नहीं भी आएगा तो आपके लिए नहीं है वो पेशेंट। ऐसे नए पेशेंट भी कई होंगे। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा, टू बी ऑनेस्ट, कई बार ऐसे डॉक्टर्स होते हैं मेरे पास। स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में मैं ऐसा करता था कि मेरे पास डॉक्टर्स आ रहे हैं तो मैं अलाउ कर देता था, क्योंकि रेफर होके आते थे कि सर काम सीखना है ये वो। ठीक है, और आके मैं देखता था कि दे डू नॉट वांट टू लर्न वर्क, दे जस्ट वांट टू बी अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज। देयर आर पीपल लाइक दिस, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर लाइक दिस, बट देयर आर पीपल लाइक दिस, and they are spending money also, they're giving me money, and they're not learning things. But that is hurting my reputation, because when they will go back to their clinic or go back to their parents, तो पता लग जाएगा कि उन्होंने कुछ नहीं सीखा है। तो बात मेरे पे आएगी कि आपने कुछ सिखाया नहीं। पैसा ऐसा जेब में डालने का फायदा नहीं है जिसका बेनिफिट ना हुआ हो किसी को। मैं पेशेंट को भी बोलता हूँ, सर पैसा दे रहे हो, बेनिफिट नहीं हुआ, पैसा मेरे काम नहीं आएगा वो। तो इसलिए मैं डॉक्टर्स को भी सिलेक्ट करता हूँ, स्क्रीनिंग करता हूँ। ये इस बात पे नहीं कि कौन पैसा ज्यादा दे रहा है, इस बात पे कमिटमेंट किसका अच्छा है, कौन ऐसा पर्सन है जो सच में सीखने आना चाहता है। मैंने कई डॉक्टर्स रिजेक्ट करे हैं, ऑल्दो दे वर पेइंग मी मोर देन द डॉक्टर्स हु आर राइट नाउ इन माय क्लिनिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मजे करने आना चाहते हैं। नो, इसी वजह सिमिलरली आप स्क्रीन कीजिए अपने पेशेंट्स को कि कौन आपके क्लिनिक पे सीरियसली काम कराने आना चाहता है। राइट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप किसी भी पेशेंट को रिजेक्ट मत कीजिए। एवरीवन शुड गेट ट्रीटमेंट, एवरीवन। राइट, बट आप ये देखिए कि मेरे क्लिनिक में कोई पेशेंट जिसका पैसा नहीं है, वो मैं अपने एसोसिएट डेंटिस्ट को दे देता हूँ कि चाहे फ्री में कर दो, कोई टेंशन नहीं, आप सीखो। राइट, यही आपके लिए बोलूंगा। आपके क्लिनिक में कोई भी पेशेंट आए, पैसा नहीं है उसके पास, काम करो। अपना मुंह दे रहा है आपको काम करने के लिए, आप दे दोगे अपनी बॉडी किसी को? नहीं, काम करो बढ़िया से। और पैसा कोई देना नहीं चाहता, नियत खराब है, तो वो आप डिसाइड करो कि आप उस पर एक्सपेरिमेंट करके सीखना चाह रहे हो, कि आप उसको कंप्लीटली रिजेक्ट करना चाह रहे हो। राइट, और जो पैसा देना चाह रहा है उससे तो लीजिए। तो दीज आर थ्री कैटेगरीज। ठीक है, तो फिर अगेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी पे आ रहा हूँ। बिहेवियर कैसा है आपका, टीम कैसी है आपकी, कम्युनिकेशन कैसी है आपकी, राइट, ऑनलाइन प्रेजेंस कैसी है आपकी, ऑफलाइन प्रेजेंस कैसी है आपकी, कितने खुशनुमा होकर मिलते हैं आप, कितना अपने आप को आपके बारे में बताते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं। क्योंकि आखिर में बात किस पे आ जाएगी, आपने सब कुछ कर लिया, मार्केटिंग मार्केटिंग एवरीथिंग, पेशेंट इज एट योर टेबल। आपने ट्रीटमेंट प्लान में बहुत अच्छे से समझाया उनको, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन करी कि पेशेंट कन्विंस हो गया। बेस्ट कम्युनिकेशन होती है जब पेशेंट कन्विंस हो जाए उस ट्रीटमेंट के लिए जिसका प्रोग्नोसिस भी पुअर हो। मैं अपने डॉक्टर्स को सिखाता हूँ, जब मैं एंडो बताता हूँ, कि अगर पेशेंट को पेरिपेकल बना हुआ है, आप कह रहे हैं कि एक्सट्रैक्शन कीजिए, कल ही किया मैंने ऐसा केस, एक्सट्रैक्शन कीजिए सर, यही एडवाइस है आपको। पर पेशेंट कह रहा है नहीं सर, मैं कंसेंट साइन करके दूंगा, मैं एक्सट्रैक्शन नहीं कराना चाहता, आप जितना पैसा देने मैं दूंगा, कल फेल हो गया केस तो भी पैसा वापस नहीं मांगूंगा, ये मैं साइन करके दूंगा। आप, मैं आप पे विश्वास करता हूँ, आपने मेरे पेरेंट्स की आरसीडी की है, मुश्किल आरसीडी की है, आप ही करेंगे रूट कनाल, मैं आपको पैसा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, इतना पैसा लूंगा सर, ठीक है दीजिए। जब आप ऐसे पेशेंट को कन्विंस कर दें कि कोई गारंटी भी नहीं, टाइम भी ज्यादा लगेगा, पेशेंस भी ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा, वो आपकी बेस्ट कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो आप उस लेवल के कम्युनिकेशन स्किल्स सीखिए। कोर्सेज हैं, बुक्स हैं। द बेस्ट बुक आई वुड सजेस्ट इज हाउ टू टॉक टू एनीवन। इट्स अ वंडरफुल बुक। ठीक है, उसमें सब कुछ है, सब कुछ, कि फोन पे कैसे बात होती है, कैसे बाहर से बात होती है, एवरीथिंग। सो लर्न कम्युनिकेशन, लर्न बिहेवियर, टीच दैट टू योर टीम। अपनी आंखें खोल के देखिए, शोज देखिए, ऐसे ऐसे जगहों पे विजिट कीजिए, अच्छे क्लिनिक्स पे विजिट कीजिए, देखिए उनके पास क्या ऐसा है जो आप मिस कर रहे हैं। मिलियन डॉक्टर से जाके, मैं किसी ट्रिप पे भी जाता हूँ आउटसाइड इंडिया और इनसाइड इंडिया, मैं जाता हूँ वहां जाके देखता हूँ। अगर सुधीर सर तो आ चुके हैं दिल्ली, हम सुधीर सर के पास नहीं जा पाए, अगर मैं जाऊंगा तो उनके क्लिनिक में देखूंगा कि क्या ऐसा उनके पास है जो मेरे पास मिसिंग है। सो ऑब्जर्व थिंग्स, राइट। सो लास्ट स्लाइड ऑफ दिस सेशन आई बिलीव, दैट इज टाइम इज मनी, राइट। तो आपके पास पेशेंट आ गया है, पेशेंट आकर बैठ गया है, पेशेंट का आपने ट्रीटमेंट कर दिया है, इतना बेस्ट ट्रीटमेंट करके दीजिए। अगर आपको लग रहा है बेस्ट नहीं कर पा रहे, तो किसी को बुलाइए। ठीक है, मैंने अपनी जेब से ही पैसा दिया है पेशेंट्स का काम करने के लिए। आपसे इंस्ट्रूमेंट ब्रेक हो जाता है, आपसे रूट ब्रेक हो जाती है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि डॉक्टर उस चीज को ठीक करने की नियत में था,
तो उस पे हम बिल्कुल भी प्रॉब्लम ऐड नहीं करेंगे। क्यों बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इतने सारे टेस्ट कराते हैं, और हम बोलते हैं इतने सारे टेस्ट करा रहे हैं, तो अच्छा इनको पता है ना कि उसमें आ जाएगा, इंश्योरेंस में पैसा आ जाएगा, इसलिए करा रहे हैं। वो इसलिए नहीं करा रहे हैं। देयर इज ए बुक बाय इंडियन डॉक्टर्स, को पढ़िएगा आप, मैं आपको सेंड करूंगा उसका लिंक, जिन्होंने बोला था कि इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि अगर कोई केस कर दे उन पे, तो उनको सिर्फ ये प्रूव करना होता है कि हमने हर तरीके की इन्वेस्टिगेशन करी थी और उसमें कुछ नहीं निकला था। तो आपके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन है? आपके लिए इन्वेस्टिगेशन आपके एक्सरेज। तो अगर आप एक्सरे लेते हैं तो उसको व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए पेशेंट को। कल को वो ये ना कह पाए कि मुझे तो एक्सरे की रिपोर्ट ही नहीं गई, क्योंकि इंडियन पेशेंट्स को बड़ा उच्चुल होती है कि उनके पास रिपोर्ट जाए। तो आप आरवीजी का वो तो नहीं ले सकते प्रिंट आउट, क्लियर नहीं आता है, फोटो सेंड कीजिए। राइट। पेशेंट को हर रिपोर्ट उनकी सेंड कीजिए, अपने पास रिपोर्ट रखिए, एक्सरे सेव करके रखिए। राइट। पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन अच्छी कीजिए, और जब पेशेंट आपके पास कंप्लीटली है तो बेस्ट दीजिए उनको। आपसे नहीं हो रहा तो किसी और से करवाइए, काम बेस्ट करके दीजिए। शुरुआत के 3 से 5 साल में हर टाइप का पेशेंट आपके क्लिनिक में होना चाहिए। इम्प्लांट भी होना चाहिए, आप करें या ना करें। सिंगल सिटिंग आरसीटी भी होनी चाहिए, आप करें या ना करें। ऑर्थो ट्रीटमेंट होनी चाहिए, आप करें या ना करें। हर तरीके की सर्जरी होनी चाहिए। ठीक है। जो जो पेशेंट आपके वहाँ आ रहा है, कोई जाना नहीं चाहिए। आपके पास डॉक्टर्स होने चाहिए जो वो काम कर सकें। राइट। स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल नेक टू नेक पे भी कराया कि मेरी जेब में 1,000 रुपये आया प्रॉफिट। 5,000 रुपये सर्जन लेके गया, पेशेंट को 6,000 रुपये बताया मैंने, कोई बात नहीं। उसको जब मैंने डॉक्यूमेंट किया और स्टोरीज में लगाया, और जब कोई पेशेंट उस तरीके का वापस आया कि मेरा थर्ड मोलर निकलवाना है सर, ये केस देखिए हमने करा था, हमारे क्लिनिक पे हुआ था, ये सिमिलर आपके जैसा केस है, देखिए इसका ओपीजी देखिए, ये ट्रीटमेंट की वीडियो है, देखिए पेशेंट को पेन नहीं हुआ, देखिए पेशेंट का ये टेस्टिमोनियल है। पेशेंट कन्विंस होता है, वहां मैं कमाऊंगा ना। तो आप शुरुआत में डॉक्यूमेंट कीजिए केसेस को, इतना कंटेंट रख लीजिए अपने पास कि जब क्रैक्टो जैसे पेड सॉफ्टवेयर्स या कोई भी पेड आपको कहता है कि हम आपको मार्केटिंग करके देंगे, तो आपके पास इतना कंटेंट हो कि आप उनको दिखा सकें कि आप डालिए इस चीज को, या आपके पास खुद पे हो कि आप सोशल मीडिया पे डाल सके, पेजेस पे इतना या गूगल पेज पे इतना कि लोग आपको सीनियर माने कि इतने केसेस यहाँ पे हुए हैं। सो डू दैट। राइट। तो कंसेंट लीजिए पेशेंट का, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन, पोस्ट ट्रीटमेंट आपने कॉल करी, अच्छा लास्ट ट्रीटमेंट भी आपने बढ़िया कर दिया, करा दिया किससे या कर दिया, पेशेंट बहुत खुश हो गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि पेशेंट से फीडबैक मांगने का तरीका आना चाहिए। आप प्रॉब्लम क्या होती है, आप कहते हैं कि हम आपको हमारा गूगल पे आप कर देना। पेशेंट कभी गूगल खोल के आपका पेज नहीं खोलेगा, फिर उस पर इतनी मुश्किल से लिंक पे नहीं जाएगा, वहां पे फीडबैक नहीं। देर आर स्कैनर्स जो आते हैं, मैं आपको नंबर सेंड करूंगा, वो पर्सन बनाता है, या आप तो इंटरनेट पे बहुत नंबर्स ऐसे हैं। प्रॉपर स्कैनर है वेटिंग एरिया में हमारे, जिससे पेशेंट जब पेमेंट के लिए स्कैन कर रहा होता है, उसी टाइम उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप सर स्कैन कर दीजिए, जब तक आपकी कैब आ रही है या आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। तो वो स्कैन जैसे ही करता है उस क्यूआर कोड को, उसके बाद सीधे गूगल रिव्यू का सेक्शन आ जाता है, वो आराम से गूगल रिव्यू देता है। फिर भी पेशेंट को नेक्स्ट डे कॉल करके पूछा जाता है फीडबैक के लिए। नेक्स्ट डे जरूर पूछना है, यही पेशेंट रीगेन होंगे। बहुत लोग पूछते हैं सर ओपीडी बढ़ानी है, ओपीडी बढ़ानी है। ओपीडी उन्हीं की बढ़ेगी जिनके ऑलरेडी जो पेशेंट आ रहे हैं उनका केयर आपने अच्छी की है। अगर आपने किसी का दांत निकाला, अगले दिन उसे फोन ही नहीं किया, पूछा ही नहीं कि वो ठीक है नहीं है, अगर उसको ड्राई सर्किट हो गया तो वो किसी और के पास चला जाएगा। आप जाके पूछिए कि एवरीथिंग इज ओके, अगर नहीं है वो ओके तो इमीडिएटली बुलाइए उसको, उसको नंबर वन प्रायोरिटी रखिए। ठीक है। तो जब आप पेशेंट की केयर करते हैं, दैट इज द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट डे कॉल कीजिए पेशेंट को, पूछिए सब ठीक है, नहीं है ठीक तो प्रायोरिटी में बुलाइए। ये फीडबैक कॉल आपके असिस्टेंट को जरूर करनी है, हर पेशेंट को, चाहे वो ब्रिज लगाओ, चाहे आपने मेडिकेशन दी हो, चाहे छोटी सी रजिस्ट्रेशन की हो आपने। पेशेंट को फील होना चाहिए कि मेरे बारे में पूछा गया, यहाँ कुछ अलग था और डेंटिस्ट के मुकाबले। राइट। तो दिस विल इम्प्रोवाइज डेंटिस्ट्री, सब लोग करेंगे तो पेशेंट भी मानेगा इस चीज को कि डेंटिस्ट्री इंप्रूव हो रही है, तो वो भी पैसा देने में नहीं कतराएगा। पैसा फोर्टिस में देने में नहीं कतराता है पेशेंट। वहां कंसेंट भी साइन करता है, वहां सब कुछ होता है, क्योंकि वहां नेक्स्ट डे कॉल भी जाती है कि एवरीथिंग इज ओके। वहां प्रॉपर शीट भी दी जाती है, प्रॉपर मैसेज भी जाते हैं। तो आपको भी वो चीज करनी है। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने इतना शांति से सब कुछ सुना। बट इट्स बीन एन आवर और मैं बोले जा रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई भी किसी के दिमाग में क्वेरी हो तो प्लीज आस्क। Chat, नो you प्रॉब्लम। check the chat.
chat section. सॉरी सर. Please check the chat section. There is a ओके question. ओके. It. चैट सेक्शन. Should I read? या श्योर सर, श्योर प्लीज. I'll read it for you. Okay. Dr. Ankit is asking, should I use personal number as clinic number, and do my patient have my personal number? Question mark. Or instead, I have two separate numbers, one clinic number and one personal number. आई वुड सजेस्ट डॉक्टर साहब कि अपना अलग रखें आप नंबर. क्या होता है कि स्टार्टिंग में वी हैव लेस नंबर ऑफ पेशेंट्स, तो हमारे फोन में अकोमोडेट हो जाते हैं. एज सुन एज वी गेट इन टू 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर प्रैक्टिस, नंबर ऑफ पेशेंट्स के बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाता है, जो ऑब्वियसली फोन भी धीरे धीरे करके डेटा बढ़ा रहे हैं, बट स्टिल फीमेल्स के लिए प्राइवेसी इशू रहता है. और वैसे भी अगर आप नंबर अलग रखते हैं, तो जब आप घर पे हैं या आपको लग रहा है कि आपका एसोसिएट डेंटिस्ट या रिसेप्शनिस्ट क्लिनिक पे है, तो वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं. आप डिस्टर्ब नहीं होते ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यू आर हैविंग योर फैमिली टाइम. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अभी नए हैं प्रैक्टिस में, आई बिलीव डॉक्टर अंकित से मैं मिल चुका हूँ, आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो अगर आप कर कर सकें ऐसा कि आप चेंज कर सकें नंबर को, पर्सनल नंबर अलग रख सकें और अपना क्लिनिक का नंबर अलग रख सकें. क्योंकि पर्सनल पे क्या होता है कि हम अपने हिसाब से अपनी स्टोरीज पर्सनल, कई बार पर्सनल अपनी डीपीज लगाते हैं, राइट. बट और वो भी प्रोफेशनल होनी चाहिए, वो हमारे पास बाउंडेशन हो जाती है. मगर अगर आपका क्लिनिक का नंबर अलग है, तो अपना उसमें प्रोफेशनल डीपी लगी रहती है, प्रोफेशनल स्टोरीज आती रहती हैं, तो पेशेंट उस पर आराम से बात कर पाता है और पेशेंट को बड़ा इंप्रेसिव लगता है कि प्रोफेशनली ये हुआ है. Yes, yes, Dr. Ankit Budhiraj. I'm very happy to see your growth, Dr. Saab. I love your endo work now. और डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर मैं मतलब हम आपसे मुलाकात हुई थी, और बहुत अच्छा लगता है आपका काम देख के. रियली अप्रिशिएट योर वर्क. वसुंधरा में हुआ था कोर्स. हाँ सर, यहाँ पे एंडो कोर्स हुआ था. Yeah. You're done with Dr. Ankit? यस यस. Next question. Yeah. Dr. Tanvi Karkhanis has a question. राइट. Hello, sir. Would like to know about how to deal with new negative online reviews if we get any, whether or how to reply or not to reply. ओके. सो ब्रिलियंट क्वेश्चन. ऐसा होता है कई बार कि Good question. आपके पास नेगेटिव रिव्यूज आ जाते हैं, राइट. पीपल टेंड्स टू डू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट. मेरे साथ हुआ रिसेंटली. किसी ने नेगेटिव तो नहीं, बट मोस्टली 3 स्टार 5 स्टार रेटिंग्स रहती हैं क्लिनिक की, बट किसी ने 3 स्टार डाले और कुछ लिखा नहीं, राइट. तो यू शुड रिप्लाई इट. वाई? क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग जब पढ़ते हैं, तो क्योंकि बहुत सारे अच्छे रिव्यूज होते हैं, तो वो अच्छे रिव्यूज इतने नहीं पढ़ते, एक आध पढ़ के छोड़ देते हैं. मगर वो ढूंढते हैं उस नेगेटिव रिव्यू के कि नेगेटिव क्या लिखा गया है उसमें. वो ऐसा कुछ तो नहीं है जो जिस चीज के लिए मैं भी जा रहा हूँ क्लिनिक पे, रूट कैनाल के बारे में तो नहीं है, डेंचर के बारे में तो नहीं है, इम्प्लांट के बारे में तो नहीं है. तो जब उस रिव्यू को पढ़ते हैं, तो वो रिप्लाई भी पढ़ते हैं. तो मैंने उस रिव्यू के नीचे लिख दिया कि सर, क्योंकि मुझे सीरियसली नहीं रिमेम्बर था कि उस पेशेंट का नाम, जिस नाम से उस पर रिव्यू आ रखा था, उस पेशेंट का नाम का पेशेंट रिसेंटली हमारे पास कोई आया हो, राइट. तो मैंने उनको लिख दिया कि सर, मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा कि आप कौन है, ठीक है, जिसने हमें रिव्यू दिया है. आपका ट्रीटमेंट हमारे क्लिनिक पे हुआ है या कोई कंफ्यूजन हो गया है, ठीक है, तो आप प्लीज मेंशन कर दें कि आप कौन है, या फिर आप अगर किसी और के ब्याह पे बोल रहे हैं, तो किसी फैमिली मेंबर के ब्याह पे बोल रहे हैं, तो पेशेंट का नाम क्या था. अब कोई रिप्लाई नहीं आया उस बात का वहां पे. पेशेंट उतना जिसने भी डाला वो पढ़ लिया होगा. इससे पेशेंट को ये समझ में आ जाता है कि ओके, अगर ये कोई रिव्यू डाला हुआ हो सकता है किसी ने फेक रिव्यू डाला हो. पहली चीज. दूसरी चीज, अगर किसी ने सीरियसली नेगेटिव रिव्यू डाला है, ठीक है, तो आप अपनी साइड ऑफ स्टोरी को बता सकते हैं. क्यों क्या होता है कि लोग तो बहुत क्लियरली ब्लैंकली डाल देते हैं. एक बार हमें डाल दिया था किसी ने दिल्ली वाले क्लिनिक पे कि यहाँ तो वेटिंग पीरियड बहुत होता है, ठीक है. तो हमने उस पर लिखा कि सर, आपको 2 से 3 बार कॉल की गई, ठीक है, ये बताने के लिए कि आप इस टाइम पे आइए. आप अपने अपॉइंटमेंट पे नहीं आए, आप सडनली विदाउट अपॉइंटमेंट आ गए, जिस टाइम पे हमारे पास सिंगल चेयर है. तो वी कैन नॉट डू दिस थिंग. इससे इंसिडेंट, एक आप मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ बहुत जल्दी.
देर इज ए वेरी रेपुटेड लॉयर इन दिस एरिया, राइट, सुप्रीम कोर्ट लॉयर। उनके उनकी वाइफ हमारे पास आई, और एज आई सेड कि जब क्लिनिक छोटा होता है तो लोगों को लगता है कि बस ग्रांटेड ले लो। तो हमारे पास उनको बुलाया गया 6 बजे, और वो हमारे पास आई 6:45 पे। उस बीच में 6:30 का पेशेंट भी स्टार्ट हो गया था, और 7 का पेशेंट बाहर वेट कर रहा था, राइट। तो मैं 6:30 वाले पेशेंट को फ्री कर रहा था, वो अचानक अंदर आई। उन्होंने बोला कि मैं आ जाऊं, मैंने बोला मैम, और तब मेरा सिंगल चेयर क्लिनिक था। मैंने बोला मैम, आपको तो हमने 6 पे बुलाया था, आप 6:45 आ रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं, मैं तो बाहर ही खड़ी थी। तो मैंने असिस्टेंट को उनके सामने बोला कि आप पेशेंट बाहर खड़ा था, आपने बोला क्यों नहीं मुझे? उन्होंने बोला नहीं सर, ये तो मैम अभी आई हैं 6:45 पे। मैंने कहा मैम, आप वेट कर लीजिए। उन्होंने उन्होंने सडनली बोला तो क्या हो गया, तब अभी आई हो तो मुझे आप देख लो। तो मैंने कहा मैम, आप अभी जो पेशेंट चल रहा है वो उसका काम हो रहा है, और जिसका काम 7 बजे है उसका भी काम हो रहा है। आप अपने टाइम से लेट है, 15 मिनट बैठ जाइए, आई लास्ट डॉक्टर सीरी टू सी यू। तो पेशेंट चला गया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे पास उन लॉयर का मैसेज आया कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि मेरी फैमिली के साथ अच्छे से बात नहीं की गई है, और उनको वेट कराया गया है। और नीचे जानबूझ के लिखा गया कि डॉक्टर, जो भी उनका पूरा नाम था, लॉयर सुप्रीम कोर्ट, ऑल ऑफ दैट। मैं इस केस में डर सकता था, सोच सकता था कि मैं कुछ सॉरी बोलूं, अपोलॉजी दूं। मैंने बहुत ध्यान से मैसेज को पढ़ा और ड्राफ्ट किया अपना मैसेज कि सर, क्योंकि आप लॉयर हैं, आपको सच्ची और झूठी सब पता होना चाहिए, सब साइड ऑफ स्टोरी पता होनी चाहिए। आपके मिसेज जिस टाइम पे क्लिनिक में आई, उस टाइम पे क्लिनिक में पेशेंट में वेटिंग था, उस टाइम पे वो उनको बुलाया गया था। मैसेज, हम इसलिए मैसेज डालते हैं पेशेंट्स को, ताकि ये ना हो कि आपको वर्बली बोला गया था 6 बजे। अगर कोई अपॉइंटमेंट दिया गया तो लिखा जाता है कि 6 PM आपका अपॉइंटमेंट है इस दिन। तो 6 बजे का अपॉइंटमेंट था, आप उनका मैसेज चेक कर सकते हैं। वो 6:45 हमारे पास आई, क्योंकि वेटिंग था इसलिए हमने उनको थोड़ा वेट करने के लिए बोला। ऑल ऑफ दैट, मतलब क्रक्स ऑफ द स्टोरीज की ये सब मैंने बोला। 2 महीने साइलेंस रहा, पेशेंट आती रही हमारे पास, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर वो लॉयर मेरे पास आए, पेशेंट्स को रेफर किया, आज भी मेरे पास आते हैं, जस्ट बिकॉज मैंने सच चीज बोली उनको। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि कभी भी आपको नेगेटिव रिव्यू आए, उस चीज में अपनी साइड ऑफ स्टोरी जरूर लिख दीजिए, ताकि पेशेंट्स उसको अप्रिशिएट कर पाए। और ऑब्वियसली गुड रिव्यूज तो रहते हैं, और किस वजह से वो आया है उसको एग्जामिन जरूर कीजिए, उस वजह को चेंज कीजिए अपने क्लिनिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर निखिल जादव से, बट कैन आई ऐड समथिंग इन दैट? प्लीज सर, प्लीज सर। क्वेश्चन जो डॉक्टर तन्वी कारखानी मैम ने पूछा था, फॉर डॉक्टर तन्वी एज वेल एज अदर डॉक्टर्स। मेरे क्लिनिक का 125 रिव्यूज है अभी, 4.9 टोटल है। हाँ जी। और एक या दो रिव्यूज है वो नहीं निकल रहे, क्योंकि उनको मैंने कांटेक्ट करने के बाद भी उन्होंने बोला कि नहीं मैं रखूंगा, कि उसको हाँ बदला लेना ही है मुझसे। हाँ। बोला ठीक है सर, चलेगा, ओके। और वो छोड़ के 5 या 6 रहेंगे अभी तक 15 साल की प्रैक्टिस में, कि मैं तो मेरे पेशेंट से बहुत प्यार करता हूँ। इस चार दीवारी की, अभी मैं क्लिनिक में हूँ, इस चार दीवारी के बाहर मैं अलग हूँ, बहुत अलग हूँ। और इस चार दीवारी के अंदर जो है वो बहुत अलग हूँ। मैं तो इतना प्यार करता हूँ पेशेंट से कि निगेटिव रिव्यू तो बहुत दूर की बात है, आना ही नहीं चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। राइट। बट फिर भी अगर आता है तो जनरली मुझे तो जब भी आया है तो ऑल द टाइम इट वाज रीजन मनी, दैट कुछ फेलियर हुआ या उनको दूसरे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ा। एंड दे सेड कि हमने तो इतने पैसे दिए थे। एक डेंचर का पेशेंट था, एक आरसीटी का था, तो हमने तो 30,000 दिए थे, मल्टीपल आरसीटीज थे। और वो डेंचर था, वो उसका भी फ्लेक्सिबल डेंचर था, तो फ्लेक्सिबल डेंचर आरपीडी बनाना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। तो दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट फ्लेक्सिबल आरपीडी। तो वो पेशेंट के कहने के ऊपर मैंने बनाया था। तो बात ये है कि उनको मैंने कॉल किया, हाउ आई आई वांट टू टेल यू कि हाउ आई डेल्ट विद दोज पीपल। आई कॉल्ड देम, आई सेड सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई सेड इट्स माई मिस्टेक, आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट, आपको क्या चाहिए अभी? तो उन्होंने बोला पैसे चाहिए। तो मैंने बोला देखिए सर, मेरा भी एक्सपेंसेस हुआ है बहुत सारा, और फॉल्ट क्या है क्या नहीं है ये जज हम दोनों नहीं कर सकते। वो अब कोर्ट में जाना वगैरह, वो आप भी कोर्ट नहीं जाना चाहते, बट ये नेगेटिव रिव्यू से बदला लेना चाहते हैं, मुझे पता है। बट प्लीज आप ये रिव्यू निकाल दीजिए, और कुछ और आपको चाहिए मेरे से तो आई विल हेल्प यू। एंड रिफंड भी चाहिए तो 50% रिफंड मैं दे दूंगा। तो उन्होंने बोला क्या 50% रिफंड क्या करोगे? 25,000 वॉज द अमाउंट, 12,500 आई वॉज पेइंग हिम राइट नाउ।
just to remove one Google negative review, because I consider it impact so much our practice. तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, 12,500 लेके मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। तो क्या हुआ कि उसका गुस्सा शांत हो गया मेरे बात करने से, और हाँ उसने निकाल दिया रिव्यू, और मुझसे 12,500 भी नहीं ली। और हाँ। जो दूसरा वो फ्लेक्सिबल वाला था, उसको तो क्या पैसे वगैरह नहीं चाहिए थे, गुस्सा ही था। सो पॉइंट इज कि उनका वो गुस्सा रहता है। राइट। आपको उनका बस वो गुस्सा ठीक करना है, बात करके, प्यार से। प्यार से बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आप राइट। बस कॉल करिए और बात करिए उनसे, एंड अपोलोजाइज। बिकॉज सी, until you don't accept, it will not start. अगर आप बार बार बोलते रहोगे ना, नहीं मैंने सब सही किया था, तो हुआ क्यों, फिर प्रॉब्लम क्यों हुआ ना। तो हमें, पेशेंट प्रॉब्लम लेके आएगा क्लिनिक पे, हमें सॉल्यूशन देना है। दिस इज द रूल। क्यों, क्या, कैसे। फॉर एग्जाम्पल कैप निकला ना, तो वो बोल रहे मैंने तो दाल खिचड़ा खाया था, कैसे क्या निकल गया कैप। मैंने बोला सर हिस्ट्री छोड़ो, हमें आगे बढ़ना है। कैप लगानी है, फ्री में लगानी है, मैं फ्री में लगा रहा हूँ। वारंटी है आपकी, वारंटी कार्ड है आपके पास, मेरा कैप लगा के देना काम है। सॉरी आपको इतना परेशानी हुई वगैरह। कि जैसे कुछ लोग रहते हैं परेशान होके आते हैं, कुछ लोगों का टेम्परामेंट कम रहता है, हाई रहता है, सॉरी, तो गुस्सा करते हैं। कोई एजेड रहते हैं, डिपेंड्स ऑन एज, या फिर कुछ यंग रहते हैं तो वो भी करते हैं, किसी गर्लफ्रेंड को लेके आते हैं, पॉजिटिव रहते हैं वो लोग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या बॉयफ्रेंड के लिए, या अपनी मम्मी को लेके आते हैं, मम्मी के लिए पॉजिटिव रहते हैं, वो लोग बहुत आपको तंग करेंगे। तो जो भी आप तंग करते हैं ना लोग, उनको थोड़ा सा पेशेंस से हैंडल करोगे तो ये सब चीजें नहीं होंगी। मेरा कहना ये है कि आर्ग्यूमेंट पेशेंट से करना ही नहीं है, उनको आपको समझाना है। आप ये समझ के रखो कि पेशेंट आपके पास प्रॉब्लम ही लेके आने वाला है, तो आपको सॉल्यूशन देना है। और आप कंसल्टेंट हो, तो कंसल्टेंट यानी यू आर कंसल्टिंग। कंसल्टिंग मीन्स यू आर गोइंग टू कंसोल और कन्विंस एवरी पेशेंट, जो भी आए, जितना भी गुस्से वाला है। मेरे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आई हेल्प समवन from my experience. Yeah, Dr. Nikhil Zadhav has question Dr. Sagar sir. Sir, how we can convince a patient who wants to do treatment but is hesitant because of high charges? ओके। तो हाई चार्जेस, अब हाई चार्जेस में डॉक्टर साहब अगेन आई वुड सजेस्ट कि जैसे अभी डॉक्टर सुधीर बोल रहे थे, तो उन्होंने सब बताया कि कैसे बात होती है। मैं बिलीव करता हूँ कि आप कोई भी चीज़ कम्युनिकेशन जब करते हैं ना, स्टार्टिंग में कितनी कर रहे हैं, कितनी बातें समझा पा रहे हैं, कितनी बातें बोल पा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है लास्ट में। ठीक है, आपने शुरुआत में क्या बोला, जैसे कि एक दिन मेरी वाइफ थी क्लिनिक पे, उसने बोला कि आरसीटी होगी, चार्जेस इतने हैं। पेशेंट ने बोला ठीक है, पेशेंट चला गया, रूट कैनाल हो गई। जब क्राउन लगने की बारी आई तो मैंने बोला कि अब क्राउन के चार्जेस ये होंगे। पेशेंट ने बोला नहीं, मुझे तो बोला गया था कि ये इसमें इंक्लूडेड है। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, उन्होंने कहा नहीं बोला गया था। अब सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स कितनी देखेंगे आप पुरानी, ये एक रिफ्ट है। तो मैंने उस दिन अपनी टीम को ये सजेस्ट किया कि पेशेंट सामने से क्या बोल रहा है वो तो आपको सही करना ही है। मतलब अपनी बात तो रखनी है कि आरसीटी के चार्जेस इतने होंगे। पेशेंट जो नहीं बोल रहा, जो वो खुद ही समझ सकता है अपने एक्सपीरियंस से कि पुराने डेंटिस्ट तो ऐसे करते थे, जो भी वो समझ सकता है, उसको भी क्लैरिटी से बोलना है। और सिर्फ बोलना नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देना है उनको। और उस प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी मेरे पास भी होनी चाहिए। तो एक प्रिस्क्रिप्शन ऐसा बनाओ जिसमें कार्बन पेपर पर लिखा हो। तो मैं जब भी चार्जेस लिख के देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि आरसीटी चार्जेस इतने, और नीचे ब्रैकेट में विदाउट कैप, क्राउन चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है इसमें। तो अगर पेशेंट ऐसी बहस करता है तो मैं कहता हूँ प्रिस्क्रिप्शन दिखा दीजिए। वैसे तो कभी होता ही नहीं है ऐसा, क्योंकि मैं बहुत क्लियरली बोल के चलता हूँ। अगर नहीं है प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट के पास, सर ये रहा प्रिस्क्रिप्शन का कॉपी, आप नीचे देख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखा हो विदाउट कैप, तो क्लियरली लिखा हुआ है हम क्राउन के चार्जेस सेपरेट लेते हैं। राइट। तो पॉइंट हियर इज कि आप कोई भी कम्युनिकेशन जब करते हैं, वो जितनी क्लैरिटी से होगी, उतनी खराब फीडबैक्स आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। फिर भी लोग कर सकते हैं, फिर भी कर सकते हैं। राइट। और सही बोला डॉक्टर साहब ने कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो हमारा भी हो सकता है। जैसे कि हमने डिसीजन क्यों लिया कि हम फ्लेक्सिबल आरपीडीज को लगा देंगे, मैंने भी लिए हैं। मैंने पेशेंट को ये भी बोला कि सर ये भी हो सकता है कि आप अगले दिन बहुत परेशान हो जाए, हम ना खा पाए इससे।
पेशेंट ने बोला फिर भी मैं 20,000 का लगाना चाहता हूँ। ठीक है, लगाइए। लगाने के बाद पेशेंट ने बोल रहा है कि मैं तो प्याज नहीं चबा पा रहा, इससे मेरे को तो लास्ट टाइम डॉक्टर ने लगाया था डेंचर, उससे उसने बोला था कि आप सेब के छिलके चबा के दिखाए थे मुझे। मैंने कहा मैम, मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था कि ये फेलियर कंप्लीट हो सकता है नेक्स्ट डे भी, बोला था। पेशेंट ने एग्री किया, बोला था। इस वजह से वो रिफ्ट नहीं क्रिएट हुई, वरना रिफ्ट क्रिएट होती। तो इसलिए मैं कई, वरना और उसके बाद भी रिफ्ट क्रिएट हो सकती है। एक पेशेंट और थे, उनका कहना था कि मुझे टाइम ज्यादा लग गया, मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि जल्दी हो जाएगा ब्रिज। हालांकि उसमें बार बार रिपीटेशन हो रही थी। तो वहां मैंने अपनी गलती, आप बोल सकते हैं कि ठीक है सर टाइम ज्यादा लग गया, आई कैन इम्प्रोवाइज। बट समबडी सजेस्टेड मी, डॉक्टर सुधीर का अपना पैटर्न है, जैसे उन्होंने ऑफर कर दिया, शी वाज वेरी हम्बल टू ऑफर 50% ऑफ टू द पर्सन। बट ये मैंने भी किया एक बार, एक बार मैंने भी किया है कि प्लांट के केस में। बट काफी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आप बहुत जल्दी ये ऑफर कर देते हैं, सामने वाले का ऑफर मान लेते हैं, कर देते हैं कि पैसा हम वापस करते हैं, तो ये आपको कल्प्रिट दिखाता है। तो अगर आपको ट्रूली लग रहा है कि आप कहीं बहुत गलत हैं, तो आप ये करें, कोई बात नहीं। मगर आपको लग रहा है कि आप गलत नहीं है और पेशेंट इंटिमिडेट होकर आपको बस ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ ना करें। अगर आपको पता है कि आपने सब कुछ सही किया है, प्रूफ है आपके पास, तो ना करें। अगर वो हो तो करें। अच्छा, अब अगर डॉक्टर साहब के क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अगर कोई ज्यादा पैसे मांग रहा है, अब वो ज्यादा पैसे मान रहा है, ठीक है, उसको कि बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो क्या करा जाए। ठीक है, ज्यादा पैसे, अब अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस चीज की वैल्यू कितनी समझ रहे हैं। समझ लीजिए मुझसे कोई कहता है कि सर, कई लोगों ने बोला भी है कि सर यहाँ पे तो एमडीएस एंडोडोंटिस्ट हैं और आपसे पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके रूट कनाल के चार्जेस तो आपसे कम है, आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि अरे यार सही बोल रहा है, मेरी प्रैक्टिस पे इफेक्ट आएगा, लोगों में बात फैल जाएगी, मेरे पास कोई नहीं आएगा। ये भी हो सकता है मेरे माइंड में। और मेरा आंसर उनको क्या होता है, बहुत हम्बली, ये आंसर नहीं होता कि जाओ वहीं पे। आंसर ये होता है कि सर देखिए, मैं मानता हूं कि मेरी जो रूट कैनाल है, जो मेरा मेहनत है, जो मेरी स्किल है, जो मेरे जो भी क्लिनिक में मटेरियल सिलेक्शन, स्किल, स्पेसिफिकली स्किल, ठीक है, मटेरियल्स पे के डिपेंड होकर मैं काम नहीं करता हूँ सर। आपकी भी उतने की करूंगा रूट कैनाल, आपके बच्चे की भी उतने की करूंगा, ठीक है। स्किल जो मेरा है, बल्कि बच्चे के लिए ज्यादा लूंगा, स्किल ज्यादा लगेगा। तो स्किल के जो पैसे हैं ना, मैं अपने इतने मानता हूँ। हो सकता है वो डॉक्टर साहब उतने स्किल के मानते हो, तो कहते हैं अच्छा उनका तो स्किल आपसे ज्यादा है, वो तो एमडीएस है, आप तो वो तो एक्सपीरियंसड है। मैं कहता हूँ सर ज्यादा ही है, पर हो सकता है उनकी नजरों में वो वैल्यू वो हो उनके लिए। मेरी नजरों में मेरी वैल्यू इतनी है। आपकी बात की वजह से आई कैन रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, कि आप मेरे पास आए तो मैं 5% टोटल में से रिड्यूस कर दूंगा। दैट इज आपकी रूट कैनाल क्राउन। बट ऐसा नहीं करने वाला हूं मैं कि किसी के कंपैरिजन में अपने चार्जेस रिड्यूस करूं। वो अपनी जगह अच्छे हैं, बढ़िया है, मैं अपनी जगह अच्छा हूं। चॉइस आपकी है कि आपको किस अच्छे को चूज करना है, सिंपल। तो आप ये बोलना सीखें। मैं पहले ये नहीं बोलता था, पहले मैं सोच तुरंत पेशेंट को 500 1000 रुपये डिस्काउंट करता था। मेल्स थोड़े ऐसे ही होते हैं। फीमेल आके आपकी लाइफ में सिखाती है कि इतना पैसे के ऊपर ना फीमेल्स का मामला थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो वाह, सीरी ने मुझे सिखाया कि जो है, अरे तुम तो सीधे 500 रुपये कम कर देते, तो सीरी नहीं करती। बिल्कुल कंसल्टेशन हुई है सर, 2 एक्सरे हुए हैं, दोनों एक्सरे के पैसे भी हैं, इसके पैसे भी हैं, अटेम्प्ट किया है, दांत नहीं निकला, अटेम्प्ट चार्जेस भी हैं, एक हॉस्पिटल एक। भी तो लेते हैं, हम क्यों नहीं लेंगे। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ आप बदतमीज बनिए, सर ने बिल्कुल सही कहा। पेशेंट को हाथ जोड़ के हम्बली बात कीजिए, पर पेशेंट को अपने ऊपर मत चढ़ने दीजिए। आप बताइए कि देखिए सर इतनी चार्जेस हैं, आपको लग रहा है आपका मार्जिन थोड़ा चल सकता है, थोड़ा 5% 10% तक आप जा सकते हो, तो उनको जता के, ये नहीं कि तुरंत कि सर मैं कर रहा हूँ, करता नहीं हूं मैं, दिस इज फॉर यू ओनली, इफ यू विल रेफर पेशेंट्स डू नॉट इन्फॉर्म देम दैट, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट आई एम डूइंग दिस फॉर यू। जो आप कर सकते हो कर दीजिए, पर ज्यादा चीजों को मत अलाउ कीजिएगा। दिस इज व्हाट माय आंसर इज, आई होप इट इज क्लियर। बाकी और डिस्कस करना हो तो आप अलग से बात कर लीजिएगा मुझसे। एक एक एडिशन है वो, हाँ जी मैं सर। 100 में से अगर 15 20 लोग आ रहे नेगेटिव रिव्यू या रिफंड मांग रहे, तो फिर मेरा जो फंडा है या सिस्टम है वो नहीं अप्लाई हो सकती। फिर जो डॉक्टर सागर सर ने जो बोला एंड एग्जीक्यूट करने को बोला है, आई थिंक दैट विल बी बेटर, दैट यू कैन गो टू कोर्ट एंड फाइट फॉर योर राइट, और हाँ फाइटिंग विद हाँ। आर्गुमेंट और वट एवर। और कोई बट नहीं कोर्ट जाता, कोई नहीं कोर्ट जाता, और जाता भी है तो आपके एग्री में ही आती हैं चीजें, क्योंकि आपने अटेम्प्ट किया। बस अपना बेस्ट दीजिएगा। फाइल टूट गई तो एडमिट कीजिए फाइल टूटी है, बहुत कम है कंसेंट ना। साइंड होना चाहिए। हाँ मेरे पास कंसेंट रहता है, सब रहता है ना, राइट। तो डरता नहीं हूँ। और फिर मेरे पास नंबर बहुत कम है कंप्लेंट्स का। अब बिल्कुल सर, मैंने ऑब्वियसली। बताया कि मैं
बात ही अच्छे से करता हूँ कि मैं उसको बिल्कुल बात करके पहले ठीक कर देता हूँ, एंड बाकी सारी चीजें बाद में करता हूँ। बिल्कुल सर। मैं फोबेटिक पेशेंट्स की भी ट्रीटमेंट करता हूँ मैं, कि ओ। जैसे दूसरे डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहते ना, वो लोग मेरे पास आते हैं। तो नाइस। मैं फिर ओजोन ट्रीटमेंट है मेरा, मुश्किल है ना मुझे करना, बिल्कुल सर। एंटीबायोटिक्स नहीं देने, तो मैं ये उसकी वजह से सीखा हूँ, पहले राइट। नहीं था। तो राइट। ये रीजन है, अगर ज्यादा आपके पास हो रहा है तो मत रिफंड देना, ऐसे इजीली पैसे देना गलत है, सही बोल राइट। रहे हैं डॉक्टर साहब। राइट। तो राइट। वो आप फॉलो कर सकते हैं, और राइट। अगर कम है तो आप जरूरी नहीं कि पैसे देके निगेटिव रिव्यू निकलता है, बात सही करके भी बात है। निकल, बस मैं बोल रहा हूँ कम्युनिकेट करिए। और गूगल से ना वो मिलता है उसका नंबर, हम्म। गूगल पे जाके उसके ईमेल आईडी पे जाके उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, या इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे उसका नाम डाल के आपको इजीली पता चल जाएगा। हर एक जन अपनी कंपनी के ईमेल से करता है या पर्सनल ईमेल से करता है, ऐसे कोई हार्डली कोई रहता है कि जो अननोन नंबर से या अननोन ईमेल से करेगा। पेशेंट तो आपके पास आई होगा ना सर, पेशेंट का नंबर तो होगा ही। हाँ, पता चल जाता है। और हो सके तो उनको क्लिनिक पे बुला लीजिए। एक मीटिंग होती है ना, उससे बहुत अच्छी पेशेंट बात है, बहुत कंफर्टेबल होता है। बहुत अच्छी बात है वो तो, फिर तो वो हो सकता है कन्वर्ट हो जाए आपके पास ट्रीटमेंट करे, राइट। कन्विंस किया तो, कि आप राइट। ही सॉर्ट आउट करके देंगे जो भी प्रॉब्लम है, राइट। राइट। और समझा भी सकते हैं कि कैसे आपका फॉल्ट नहीं है, प्यार से। एग्जैक्टली। वो एग्जैक्टली। होता है, ऐसे भी होता है, मैंने तो किया है। बिल्कुल सर, मैंने भी किया है, बिल्कुल होता यस, है। ट्रू। Right. थैंक यू। Any more questions? Any more things? If anyone has more to discuss with Dr. Sagar, we have that group exclusive for that. No promotions in that group. Courses के भी नहीं, materials के भी नहीं, कोई भी promotions नहीं होंगे। डॉक्टर सागर के कोर्सेज है वो वहां पर आते रहेंगे। आई विल पोस्ट इट, और डॉक्टर सागर विल पोस्ट इट। यू कैन Right. अटेंड, sorry, his course at his clinic at Delhi. You have any course coming up now? Sir, mostly I promote it on my personal things. So, the thing is that mostly we conduct general dentistry courses only. एंड कभी होता है प्रैक्टिस मैनेजमेंट का, तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों डालते रहते हैं। सो वेन एवर विल डू दैट, विल पोस्ट इट ऑन आवर Follow you इंस्टाग्राम। on तो Facebook. यू कैन सी दैट देयर, नो वरीज। You follow him on Facebook and Instagram. This video will go, part of the video will go on YouTube, not the यस। whole part, as Dr. Sagar has consented for the partial part. So we यस। will post on YouTube. We will send you link on in your WhatsApp. And this group will stay for how long? How many days? Or permanent? जिसमें एनीथिंग सर, additional और भी कंफर्टेबल लोग एनीथिंग। आएंगे क्योंकि बाद में उसमें। Anything, sir. Anything. I'm comfortable. Anything is Whenever you fine. want to ask about dentistry, little bit about endo, I can tell. Whatever you have problem, you want some suggestions or consultants, right? Doctors, we can help each other. No worries. Okay, fine. So I'll keep on adding people who will ask me for your name, Surely, sir. and this group will be there, and these people also can communicate with you. Surely, sir. Surely, sir. Let's see then. Thank you so much. I Thank you, think, sir. Thank you. and thank you everyone for listening. Thanks a lot. Have a good day to all. Bye bye. Same to you, sir. Thank you.